Assalamu alaikum. Happy New Year. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. Amna. जी वालेकुम सलाम हसन कैसे हैं आप बड़ा विंटर शिंटर आप बना रहे मैंने पहन तो ली है लेदर जैकेट हैं तब की मुझे गर्मी लग रही है हाँ और आप उतार क्यों नहीं रहे क्योंकि मेरे अंदर टी शर्ट सी है ना तो फिर टाइट सी टाइट सी तो उतार लिया। 26 डिग्री है कराची में भाई जी। 1 जनवरी 2023 ब्राइट इंसानी 26 डिग्री और मैं गाड़ी में आया तो मुझे ऑब्वियसली एसी लगा के आया हूँ क्योंकि लेदर बाहर तो है जैकेट भी पहनी ग्लोबल थी वार्मिंग भी हो जाती है ना और ग्लोबली ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता हाँ। है गाड़ी में और गर्मी बहुत ज्यादा है हाँ। कराची में अभी हाँ। भी आमना ने थैंकफुली एसी लगाया हुआ है हम्म, तो बस ये बारी बारी तौर पे ठंड है ओह। अंदर गर्मी है that didn't come out right It but came out exactly the way you wanted it to come out. We know you well enough. you know me too Pyare well, huh? Hassan, we know you well enough. Okay, जी। Amna, how's your new year going? My New Year is going great. I have family over. माशाल्लाह And alhamdulillah, सबने देखी तस्वीरें और सबने कहा, oh wow, it's such a great spread and you're such a good host. I am not the good host. That's Kamran bhai and Mariam. ओ जो कल आपने हाँ तस्वीरें हाँ सब हाँ बनाई हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ मैंने कहा after looking at their spread, I feel very insufficient. But then I tell myself, नहीं नहीं ठीक है, it's but you're okay. going to post your spread pictures also no? I will. It won't your be this spread bad. pictures also does not right sound right the new What year is wrong? the new year is not starting on तरफ a आप किस साइड ऑफ द बेड से उतरे हैं आज पता नहीं क्या बल्कि हुआ किसके साइड ऑफ द बेड से उतरे हैं आज अपने ही ओके अपने ओके अपने जी जी आज मैं एक्चुअली 2 बजे उठा हूँ आमना जी तो अभी 4 बजे आपने टाइम दिया था इसलिए मैं 20 मिनट लेट इट्स हो अर्ली गया मॉर्निंग फॉर यू हाँ it obviously it is ओके 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 मैं आज चाहती हम हूँ आप कल मेरे साथ चले मेरे प्रोसीजर है कल किधर तो आप मेरे साथ चले अस्पताल 100 मिनट 9 o'clock रिपोर्टिंग टाइम है मैं पहुंच 9 जाऊंगा a.m. if you want me there I'll be there हाय of course थैंक यू I know you would ये हाँ आपने बात की है हाँ कि आपको सुबह उठाने का ये तरीका है नहीं नहीं मैं सोऊंगा नहीं पूरी जी रात अगर ऐसी बात है ओह गॉड पहुंच जाऊंगा मैं हाँ और वो तो सुना कि बड़ा आम सा मतलब क्या कहते हैं उसको कॉमन I'm not even calling it surgery. It's a procedure. I have what's a going to cat. happen would you like to tell us Yeah, it's. I was told that there are no needles and no blades involved, okay and it's just a little bit of. So they take 2 hours to numb the eyeball with drops. ठीक है वो drops डालते रहेंगे. Eyeball जब numb हो जाएगा, तब वो आपको ले जाएंगे, and then they'll do a little bit of a laser cut, and they'll suck out the lens, and they'll put another one in, and then suddenly I will have 20/20 vision. no more glasses No more glasses. oh my god really But I will keep the glasses. I'll get But- clear glass. but why Because I'm so used to them. They're part of my personality. But the good thing is, I don't know whether I'll be able to lose the glasses or not, as in the spectacles. The great thing is कि मुझे अब prescription sunglasses नहीं करनी पड़ेंगी. No, but why are you saying that you don't know if you'd be able to lose the glasses? Of course you'll be able to lose No, the no, I will be able to lose the. I'm short-sighted, so I'll lose the glasses. Not tomorrow because दोनों आंखें करनी है ना. तो हाँ। हफ्ते के गैप से होंगी. So in another month, नहीं तो inshallah. एक आंख का आपका शीशा हटाना पड़ेगा फिर आप। हाँ तो कल वापसी पे अस्पताल से यही होगा ना कि इस आंख का जिसकी सर्जरी है वो टक करके वो शीशा निकाल देंगे. और इसकी क्या प्रोसेस होता है रिकवरी का Nothing. बस है हाँ nothing. मतलब put- right after you get it done you'll be able to like see with that eye Yeah. really हाँ. is that simple It's really? like getting an acrylic nail or something. I mean. oh wow technology बड़ी हाँ. आगे बढ़ गई है So no, they'll give me a shield for the eye to come home, a plastic shield. So I'll be a pirate for like 20 minutes. घर आके उन्होंने कहा शील्ड को धो के रख लेना because you only need to wear it at night, so that inadvertently you don't rub your eye or scratch your eye. हाँ. That's it. मैंने कहा what about screen time and TV? Yeah, as normal. Proceed as normal. Okay. ड्रामे देखी जाओ ड्रामे देखी also this is our last review with you glasses on नो भाई अभी तो ग्लासेस पहनूंगी ना जब तक दोनों आंखें नहीं हो जाती. तो दूसरी आंख कब होनी है अगले मंडे. ओह अच्छा एक हफ्ता है Interesting. oh it's like new year new you New me, you're new me. Yeah. nice Yeah. nice. wish you all the best Thank for the you. procedure Thank you. एंड आप करा लें फिर मुझे बताइएगा क्योंकि मुझे भी अनके तो लगी हुई हैं तो But this is not the corrective laser. मतलब this is I had to get it done. this is a byproduct of that This is a byproduct. हाँ. It's a fun byproduct that I don't need glasses anymore. But the thing is that I have premature cataract in one eye. और मेरी 1 साल से हेजी विजन हो रही थी एक हाँ आंख जो की. आप अक्सर कहती थी हाँ. कि एकदम मेरी आंख मुझे ऐसे लगता है लिटरली किसी ने धब्बा ग्लासेस पे लगाया है. When I keep cleaning the glasses, but it's still not cleaning. You know, blurry सी. तो it's really annoying. वो खुद ही ठीक हो जाता था फिर होता था ठीक हो जाता था कभी भी ठीक नहीं होता है. It's constantly blurry. constantly blurry हाँ, if I close this eye, I can't see you. really Yeah, it was pretty bad. It's getting pretty bad. oh okay
So it's not something I elected to do. I had to do it. Okay. Yeah. New Year starting out with a procedure. Interesting, but I'm happy. It's like a good procedure. It's a good. Yeah, it's a good procedure. Okay, wishing everybody love, health, happiness, and minimal procedure. ये डॉक्टर ने कहा है minimum कि आप procedures. उतने ड्रामे देखें जितने आपको एब्सोल्युटली देखने की जरूरत है. वो ना देखें जो कि you can get by not watching. तो बताएं ना फिर आज. Move कर जाए ड्रामों की तरफ हाँ. unless you there's something else. No, because एक ड्रामा ऐसा इस हफ्ते जो शुरू हुआ है, मैं तो चाह रही थी हम उस पे एक डेडिकेटेड एपिसोड करते हैं. I have so much to say about it. मैं तो कह रहा हूँ कि वो बड़ा जबरदस्त ड्रामा है. आप अभी ना कुछ कहें. It is like a dedicated episode for, of course, Terabin. हाँ. We saw the first 2 episodes. Oh. And it was heads and shoulders above the drama it replaced. It is also head and shoulders above any previous Geo dramas. Absolutely. That have aimed to do Agreed. this. In all ways. Oh. हदें पार कर दी हैं. Oh. हाँ. And some in good ways also. Okay, yeah. मतलब entertaining. No, there are both opinions. हाँ. Absolutely. But it's something that a lot to be said about हाँ, Terabin, हाँ, right? So मतलब if any drama made a mark in the first couple of episodes, it's got to be Terabin. But I could do like 10 minutes just on the styling and the clothes in the episodes. हाँ. Pink frock included. Ooh. Oh. So much to say about Terabin. हाँ. And then we have the last episode of Fraud. Gee, Alhamdulillah. And I'm so excited that Fraud is being replaced by Kuchan Kahi. Fraud is being. हाँ जी. Saturday 8 PM slot जो है ये बड़ा पिछले कुछ अरसे से ये नीचे चला गया बट ये बड़ा important slot है और आपको याद होगा कि मेरे पास तुम हो Saturday 8 PM अलिफ. आपको कैसे भूल सकता है मुझे याद हो ना. Saturday 8 PM Sinfe Ahan was also Saturday. Was it? I think so. Yeah. We've always had a good drama on Saturday हाँ, night. Saturday night is always और बेग साहब का ड्रामा आता है I think वो हाँ, Saturday 8 PM उनका वो है. तो बस ये भी. तो ये है तो गुड. तो हमारा वीकेंड अच्छा ओ भाई और है भी सैटरडे को ताकि हम संडे को आराम से रिव्यू जुम्मे को हम देखेंगे जी. तेरे बिन की 2 एपिसोड्स इकट्ठी हमने देखनी है YouTube पे. और तेरे बिन तो देखना ही देखना है भाई. और हम फिर देखेंगे कुशन कही. हाँ. और ऑफ कोर्स हम पिंजरा देखते रहेंगे. ये 2 ड्रामे बहुत और एक ही लैला खत्म होने वाला है वैसे भी. हाँ. तो ये काफी है ड्रामे. वीकेंड इज सॉर्टेड. मंडे रिव्यूज आर सॉर्टेड. पिंजरा भी हम देखेंगे. हाँ पिंजरा भी वही मैंने कहा ना पिंजरा तो हम देखेंगे. एक थी लैला खत्म हो जाएगी और मंडेज आर सॉर्टेड. तो आज प्यारे हसन कटाया क्या फिर क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ उतना देखें जितना आपको देखने की जरूरत है. यार आपने मेरी शहजादी कटाया. मैं ना देख सकी. इट डिडंट मेक द कट. आपने देखा नहीं. मैंने तो आपको पिछले हफ्ते कह दिया. आपने सही कहा था मैं कुछ भी आमना आप बोलेंगे मैं देख लूंगा ये नहीं देखूंगा. मैंने वहम भी नहीं देखा. वबाल मैं वबाल कल देख सकता था. यकीन जानिए बहुत टाइम नहीं देखा आपने. मुझे तो डॉक्टर ने मना किया. सर्जरी हुई तो नहीं कल है. अभी खुद ही बताया सर्जरी कल है. अच्छा वो प्रिपरेशन. हाँ ना आईबॉल को वो भी करना है ना जरा सा स्लो डाउन करना है. हाँ उसको डायलेट करना होता है. नो आई हैव बीन पुटिंग आई ड्रॉप्स ऑन सैटरडे. I have to put eye drops 4 times a day. अच्छा Netflix पे आपने क्या देखा? अच्छा तो मैंने देखा Excel. By the way, Excel about 2 plus size women, and I was underwhelmed. I have to say, I found it very, very superficial. ठीक है. I did not like it. Okay. But I also watched Dr. G, जो last time ही बोला था. वो I found it fantastic. मैंने 2 नई मूवियां फड़काई हैं. एक मैंने देखी मोनिका ओ माय डार्लिंग. और एक फिर मुझे राजकुमार राव की एक्टिंग इतनी पसंद आई उसमें तो फिर मैंने एक और राजकुमार राव की देखी हिट HIT. दोनों बड़ी अच्छी फिल्में. वेरी गुड एक्टर. राजकुमार आई हैव टू से अबाउट राजकुमार राव. मैंने पहले भी उनका काम देखा है. उनकी एक फिल्म थी जिसमें एक और लड़का भी था लड़की भी थी. कॉमेडी उनका था मुझे अब उसका नाम भूल गया. ये जो न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स है ना ही इज माय फेवरेट एक्टर उसमें. Because he's so versatile, if you look at his like comic roles and even his serious roles, he does a very good job. Ayushmann Khurrana is mine. Ayushmann Khurrana is also very good. I like Ayushmann Khurrana, but I don't know. I mean, I just feel that this new breed of actors is a lot more experimental, and they're willing to take more risks with their career in doing these oddball kind of dramas. There might not be huge superstars, mega stars. But Shah Rukh Khan made it to the. Or was it top 50 stars of the world, actors of the world, all time? Some list, but only Asian who made it, I think.
आपको पता है मैंने दोनों गाने नहीं सुने थे पठान के ओह जब आए। कल मैंने नॉट रात को इवन बदनाम नहीं, रंग, कल फिर मैंने कहा चलो, बेनाम रंग, क्या मैंने क्या कहा चलो कल देख बेशरम रंग, हाँ, कल हाँ मैंने कहा चलो देख ही लेता हूँ। और मैंने नहीं हाँ he needs to act his age now, he's 60 almost. ओके ठीक है ना, वो हो गया अच्छा। we're okay with Tom Cruise jumping from the Burj Al Khalifa Look at at Tom 60. Cruise na, look at I Tom think Shah Rukh Cruise, Khan's look looking very good. look at Tom I think Cruise. he's looking good. Who? Shah Rukh. Shah Rukh? हाँ. Unfortunately You didn't think so? and this is me, I'm obsessed with Shah Rukh Khan. I love Yeah. him. I've loved him all my life. I will Okay, continue we have to to see the film to decide. yeah, the songs were not very like But Maula Jet hit 100 crore domestic अच्छा, market. oh, हाँ जी. So yeah, Well good year done, for Maula. Pakistani cinema. we also found out that Maula Jet, which was supposed to release in India, Oh, and we knew it wouldn't. and वो obviously We knew it उन्होंने कहा कि ये postpone नहीं हुआ, ये cancel हो गया। Cancel हो गई है. हमें पता तो था ये ये होगा. कैंसल कल्चर ऑब्वियसली इधर हो या उधर हो, जी अनफॉर्चुनेट। जी. मेरा एक इंटरव्यू आया थर्सडे को विद मुसद्दिक मलिक, हु इज द डायरेक्टर ऑफ हब्स। जी उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। मुसद्दिक की बहुत तारीफ की जी लोगों ने कहा, he बिल्कुल. was I very think he came refreshing। across as a very mature, very honest, हाँ and very hardworking individual. I was very impressed by the interview. मैंने भी देखा हाँ और मुझे लगा जैसे कि वो और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे, बट अच्छी बात है कि उन्होंने डिप्लोमेटिक रूट लिया जरा सा. जितना कह दिया उतना भी ठीक था. मेरे तो ख्याल में बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक रूट नहीं लिया, हाँ. बट हाँ ही डिड होल्ड बैक, He did hold और back. वो I अच्छी mean, बात है obviously, हाँ. बिकॉज ऑब्वियसली जो आप उनकी पोस्ट थी उसमें he didn't hold back ना. When you call हाँ somebody an asshole, then you're हाँ not holding back. या But here he was more sort of. व्हिच इज अ गुड थिंग। That's what I said. That he took the diplomatic route, which is a good thing. दूसरा also with time I think he might become more diplomatic जी. because obviously काम आप भी तो चाहिए काम ना. करना होता है, आपने लोगों के साथ रहना होता है, जी. बट बहुत अच्छा लगता है कि जब आर्टिस्ट को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को हम अर्ली फेज में उनसे बात करते जी. हैं, तो वो जो उनकी एक रिफ्रेशिंग ऑनेस्टी होती है बड़े मजे की होती है। बट आमना हमने, मैं जैसे बता रहा था, फरहान को इंटरव्यू किया था अभी भी, He was fine. फरहान वाज स्टिल Yeah. वेरी ऑनेस्ट। Yeah. तो दैट्स अ डिसीजन जी. that you make, जी. and I hope that more people like Musaddiq join the industry, Yeah. and I wish Musaddiq all the best, and I hope that he remains honest to his Hmm. craft, because सबका aim eventual तो ये है ना कि content को बेहतर करें। Absolutely. ठीक है आमना। जी. और इस नोट पे हम शुरू करते हैं आज ड्रामों के रिव्यू करने का सिलसिला। आपने बता तो दिया है कि तेरे बिन से. तेरे बिन नहीं एक थी लैला, पिंजरा, फ्रॉड और तेरे बिन। जी. मेरी शहजादी और वबाल हमने नहीं देखा, मैं और आमना यही है कि नहीं जा रहे। आपको दोबारा नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी ऐसा है. आमना पिंजरा के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे अब थोड़ी मूवमेंट चाहिए थी पिंजरा में, जो मुझे नहीं मिल रही है अनफॉर्चुनेटली. पिछली 2-3 किस्तों से स्टोरी जो है वो स्टैग्नेट कर गई है, और माना कि इट्स प्रोसीडिंग वेरी सेंसिटिवली, and you are engrossed in the characters and their emotional ups and downs. That's all very well, but the story also has to move. So unfortunately the story is not moving. That's about it. इससे बात ज्यादा क्या बात इससे बात क्या ज्यादा होगी? मैं एक छोटी सी बात और एडिशनल, छोटी बात करते करते अब हमारा 10 मिनट का रिव्यू हो जाएगा, ऐड करना चाहूंगा कि क्या ये जरूरी है कि हम 25-30 किस्तों के ड्रामे बनाएं, क्योंकि अब हमें पता है कि छोटी सीरीज बनना शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे बन भी रही हैं। पहले भी हमने देखा है। पिंजरा एक ऐसी कहानी है, मेरे ख्याल में 12-13 एपिसोड में रैप अप हो जानी चाहिए। 13 एपिसोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, मैक्सिमम 15 एपिसोड होने जी। चाहिए। तो अब तक ये कहानी जहाँ पे पहुंची है, और क्योंकि अब पिछले 2-3 हफ्तों से हम ये, मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था, आपने कहा नहीं मेरा अभी वो टिपिंग पॉइंट नहीं आया। हाँ, मैं इसमें इस हफ्ते आपका वो टिपिंग इसमें आ पॉइंट गया. I was actually bored watching Pinjara this week हाँ। because I just felt there was a lot of repetition. लिटरली नो मूवमेंट। No movement. मतलब है कि आपको पता है कि जो बच्चा मर गया है उसके बाप जो है वो इसकी बेल रुकवा रहा है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहता है, वो वैसा ही है। आपको पता है इसका जो लॉयर है वो बेईमानी कर रहा है और बाप जो है वो नहीं मान रहा, वो वैसे का वैसा था। आपको पता है कि खतीजा स्ट्रगल कर रही है मियाँ के उसके साथ, गैस लाइटिंग के साथ और बच्चों की प्रॉब्लम के साथ, वो वैसी की वैसी थी। आपको पता है कि जनाब जो वजीहा है वो सपोर्ट करना चाहती है, वो शी इज ट्राइंग टू शो देम सम सैनिटी एंड सम लॉजिक, वो नहीं सुन रहे, वो भी वैसा का वैसा था। अबान जो है वो भाई को भी नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा, सिर्फ माँ को मिलता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, वो भी वही सिचुएशन माँ थी। को तो नहीं, वजिया की मुलाकात हमने देखी है। मगर माँ को मिल लेता है हाँ, ना, वजिया वो की कहता है ना, he says कि सिर्फ मामा को मिलूंगा।
his situation in the remand house and the friend that he's made. So सब ऐसे रहा। nothing moved. Huh? It needed to move. It needed to move. There was one scene where Khatija goes and meets the police wali खातून. उसका तुक मुझे समझ नहीं आया कि क्या था. वो छुआ नहीं, nothing came of it. हाँ, exactly, because nothing happened. So either she needed that reassurance कि इज्जा वकील भी होते हैं बेईमान. So how simple is Khatija? Why is she asking this question? Does she not live in Pakistan? Does she not know that people are corrupt in all like institutions? Yeah. Why would she go to the police wali's house and ask her this? Yeah. तो obviously वो कोशिश कर रही है कि वो कहीं से इसको हिम्मत आए और वो eventually आ भी जाएगी. मगर मैं चाह रही थी कि इस किस में आती. मुझे वो उन दोनों की भी मुलाकात नहीं समझ आई, वजिया की और फुरकान के किरदार की। नहीं आई समझ. हाँ, और माँ कह रही है कर लो, वो कहता है वो फर्क है, वो करेगा शादी नहीं करेगा, और वजीहा क्यों शादी करेगी उसके साथ? You know, I mean, the thing is that if you look at Wajiha and she's a woman who's successful in her career, दो उसके जवान बच्चे हैं, वो इस वक्त क्यों शादी करेगी किसी ऐसे बंदे से जिसको अभी मिली है? बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है ना? यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, चाहे वो सुनीता मार्शल हो, हदीका कियानी हो, आशिर, उमैर राना, सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऐना, बाकी जो दो बच्चे भी हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर कहानी आगे नहीं बढ़ेगी और मैसेज भी बहुत अच्छा है, तो वो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, जो कि होना शुरू हो गया। वो होना नहीं चाहिए। पिंजरा जैसा एक अच्छा जो ड्रामा है, एक सेंसिटिव इशू को टैकल कर रहा है, उसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन टू आमना जी, 4 ड्रामे हैं, फ्रॉड एक थी लैला, चलें ठीक है। मेरा एक थी लैला के साथ भी इस किस्म में यही प्रॉब्लम था जी, कि मुझे लगा स्टैग्नेंसी थी, और जो पूरा ट्रैक था उन साहब का और उसकी बेटी का, सबा का, उसकी शादी का और उसको मार पड़ना, वो इट टुक अवे फ्रॉम माय इंटरेस्ट इन लैला। मतलब मुझे जानना है कि लैला ने क्या क्या किया जी, और मुझे चाहिए था कि लैला के हर किस्म में एक लैला का नया आशिक उभरे। तो ये अब 2-3 किस्से इन्होंने इन साहब पे लगा दिए हैं, इन अजीम साहब जो होते हैं, तो मैं खुश नहीं थी ये किस्से देख के बहुत। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि जब किस शुरू होती है तो किसका नाम था, चौथी किस, जनरल स्टोर। हाँ, और उसमें हाँ, आप शुरू में एनिमेशन भी देखते हैं वो हसन अहमद के किरदार की और इकरा के किरदार की। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी एपिसोड में वो तो हुआ नहीं। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि ये क्या हुआ है, कि ये किस चेंज हो गई है या आगे पीछे हो गया है, या हमने, और आपको वो किरदार इंट्रोड्यूस भी किया गया है पिछली किस में हुआ है, तो और उसका इट शुड हैव फॉलोड अप ऑन दिस एग्जैक्टली, सो डिडंट, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो मुझे बड़ी, पहली बात तो ये बहुत अजीब लगी। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली ये हो सकता है मुझे समझ ना आई हो, बट ज्यादा चांसेस हैं कि ये डेलिबरेटली किया जा रहा है कि जो अजीम था और लैला थी, इनके आपस में ताल्लुक था या नहीं था। बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ये एस्टैब्लिश हुआ है कि वो जब लैला को लेके जाता है होटल रूम में, वो तो एक्चुअली अपनी बेटी सबा को एम्बुश करने जा रहा होता है। तो और फिर सबा कहती है कि तुम तो उसके साथ, लैला को कॉन्वर्सेशन एक होती है, कहती है तुम तो सबके साथ चक्कर चलाती हो, तुम मेरे अपनी दोस्त के बाप के साथ तुमने चक्कर चलाया ताकि तुम्हें कुछ ना हो, ये हो ब्ला ब्ला। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो चक्कर था या नहीं था? नहीं, तो शुरू में दिखाते हैं ना कि वो, क्योंकि ये एस्टैब्लिश है कि लैला फ्री हर एक के साथ हो जाती है, फ्री वो होती है अजीम साहब के साथ अनडाउटेडली, लेकिन जब अजीम साहब उसको शादी का करते हैं तो कहते हैं मैं पागल हो गया, मैं शादी क्यों करूंगी? तो था वो असल में हुआ, इतना था मेरे ख्याल है। हाँ, वो असल में हुई चीज है ना, बिकॉज बाद में अजीम साहब ने तो ये भी मान लिया था, क्योंकि वो अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, कि निकाह भी हुआ, वैसा कुछ हुआ। सो वो जो कंफ्यूजन है वो मुझे समझ नहीं आई, कि मुझे समझ नहीं आया या डेलिब्रेट है, लेकिन मुझे वो अननेसेसरी लगा, मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा, इट वाज पैन्ड आउट अ लिटिल टू मच। मतलब थोड़ा ये इतनी की क्या जरूरत थी, यू नो। दूसरा एक ट्विस्ट जो उन्होंने अब दिया, नया ट्विस्ट, कि लैला ने ये कहा कि जी मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे चाहिए, तो वो कौन ब्लैकमेल कर रहा है ये भी नहीं पता। ये तो ऑब्वियसली डेलिब्रेट है ना। हाँ, ऑफ कोर्स, कि वो कौन है उसको करा, और वो एकदम उन्होंने बीच में, मुझे लगता है जनरल स्टोर वाला होगा, शायद कनेक्शन वहां बने, मुझे नहीं पता, बट उसके पैसों के लिए फिर उसने अपनी दोस्त का सारा राज बता दिया बाप को। और आखिरी जो सीन था वो ऑब्वियसली बड़ा टेलिंग था, क्योंकि वो कहीं पे, अब जहाँ वो आई थिंक प्रेजेंट डे था, फ्लैशबैक्स में से नहीं था सीन, कि वो कहीं पे है और वो किसी को फोन पे कह रही है कि मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पे आ गई हूँ, अभी हमारी 2 बार मुलाकात हुई है, तुम हो कहाँ, तुम आ गए। तो वो कौन है, वो किससे बात कर रही है, बिल्कुल वो भी इंटरेस्टिंग बात है। एक सीन था अगेन, वो दैट वाज टेलिंग, जब वो सबा कहती है कि आप भी तो मर्द हैं, ये इस तरह की
कि बेवकूफ बनाना कितना आसान है मर्दों को, तो पुलिस वाला रिया यासिर का जो किरदार है साद, वो बड़े उस तरह से रिएक्ट करता है एज इफ के ही इज वन ऑफ देम। वो मुझे महसूस हुआ वहां पे कि मुझे तो लगता है कि साद इज a little more, he's invested a little more than he should have been. हाँ So कुछ है, कुछ तो है, चक्कर है। कुछ है, लेकिन ये एपिसोड जनरली कंफ्यूजिंग थी। हाँ, कंफ्यूजिंग भी थी और थोड़ी स्लो भी थी। और बात वही है ना हसन कि हम तो लैला को देखना चाहते हैं। हाँ तो लैला जब आपको नहीं नजर आती और कहानी इधर उधर चली जाती है तो फिर आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार हुक, आपका हुक जो है ना वो लैला है। हाँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अजीम का किरदार तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तो इतना ज्यादा अजीम के किरदार को हाँ, देखूं, हाँ। इसलिए बिकॉज ही इज फैसल कुरैशी। या वो बात है। जैसे शुरू में पठान का किरदार था, जी वो बड़ा एक किस्सा था छोटा सा, और जी वो बिल्कुल बात हो गई आगे बिल्कुल पीछे हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ठीक ही है, है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। नो बट नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द स्टोरी। हाँ, बिकॉज द स्टोरी इज वेरी द इंटरेस्टिंग एंड स्टोरी इज वेरी एंगेजिंग। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो जनरल स्टोर का दिखा के और वो दिखाया मतलब नहीं। मैं हर एक को स्टोरी बताती हूँ, जो बैठता है कहता है क्या ड्रामा देख रही हूँ, मैं कहती हूँ यार बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लड़की, एक मोहल्ला है जिसकी एक लड़की है लैला, और वो गायब हो गई है पहली किस्त में और मिल नहीं रही, और उसके 5-6 आशिक हैं जो कि उसने पीछे लगाए हुए हैं, और वो हर आशिक एक सस्पेक्ट है। दैट्स अ रियली फन स्टोरी, बट दे नीड टू लेट इट बी फन, यू नो, एंड नॉट अलाउ इट टू ड्रैग। दूसरा मुझे लगा कि यासिर टर्निंग आउट टू बी अ रियली गुड डायरेक्टर, एंड बड़ा फ्रेश उनकी स्क्रीन की अप्रोच है और हर चीज़, मगर एक वो खास सीन करते हैं ज़्यादा, जो कि हर एपिसोड में ज़रूर होता है, विद द कैमरा रोटेटिंग रिवॉल्विंग अराउंड टू कैरेक्टर्स हु आर टॉकिंग। आई थिंक इट्स अ बिट ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, बिकॉज़ यहाँ पे भी जब लैला के माँ बाप बात कर रहे होते हैं तो वो कैमरा घूम ही जा रहा है, या इज इट सबा एंड द पुलिस वाली, आई थिंक सो, एक वन ऑफ पुलिस देम, वाली केस घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। इट गेव मी अ बिट ऑफ अ हेडेक एंड इट्स नॉट बिकॉज़ माय आई, इट गेव मी अ बिट ऑफ अ हेडेक। थोड़ा सा और ठीक है, बट आई थिंक इट्स टू प्रोलॉन्ग्ड। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये, डू यू नहीं, आई थिंक थिंक वो जो माँ वेट कर रही होती है, माँ वेट कर रही होती है कि हुए जा रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही यार जा रहा उसमें गुल राना जी के एक्सप्रेशन कितने है। मजे के थे। हाँ, मेरा ये आपसे सवाल था, डू यू थिंक उनकी जो वालदा हैं उनका जो ख्वाब है उसी को रेलेवेंस है? कि मर गई है। नहीं, ख्वाब वो पहले देखती हैं कि फांसी का फंदा है, हाँ, और फिर वो देखती हैं कि लैला खड़ी है और उसको पेट में उसको गोली पेट में, लगी है। हाँ हाँ, हाँ, हो सकता है। हो सकता है, बट इट टीजेस योर थॉट प्रोसेस, तो अच्छी बात है। मेन ट्रैक अभी भी इंटैक्ट है, तो वो बड़ा जबरदस्त है। हाँ जो मेन इसका जो प्रेमिस है कि वो लैला है और हाँ, कहाँ है और क्या है। बड़ा अच्छा होता है कि जब आप एक चीज को क्वेश्चन करें और आपको जवाब मिल जाए उसका, एक स्टोरी देखते देखते। मसलन मसलन जब होटल में अजीम साहब और लैला आते हैं, आपको लगता है कि अच्छा देर कमिंग टू स्पेंड टाइम इन द आफ्टरनून, या कोई डेट है या कोई ऐसी चीज है, तो पहले वो उसको हाथ 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 में हाथ नहीं पकड़ते, कलाई से घसीट के लाते हैं, उसके बाद बाजू से पकड़ते हैं। सो आई एम थिंकिंग यार व्हाई इज अजीम बीइंग सो अग्रेसिव? आई मीन आरंट दे कमिंग फॉर अ रोमांटिक इंटरलूड और समथिंग? टर्न्स आउट नो, they're coming for the ambush on the beti, so that's why he's angry and aggressive. So it made sense, so I like that. दूसरा, आपने नोटिस किया होगा कैस की शक्ल नहीं दिखाई। कैस की शक्ल नहीं दिखाई। डेलिब्रेट है ये क्या है? I mean, I would think deliberate है। हाँ, कैरेक्टर तो मिल ही जाता है। क्योंकि कमरे के अंदर तक कैमरा गया लेकिन कैस की शक्ल नहीं दिखाई। कैस की शक्ल नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं दिखाई? दूसरा ये कि जो आपके ट्रांस कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या रोल है? जो एक ही किरदार है अबे ट्रांस। गाती भी तो आती है लैला, और लैला कैसी तो लैला, हर कोई उसने चाहे उसको स्पाई करने के लिए रखा है हाँ ना साथ में। हाँ एक वो डायलॉग था जब गाड़ी में अजीम जा रहा होता है एंड साथ से अब जाते जाते ये भी बता दो, एंड ही ऑफर्स टू ब्राइब हिम और समथिंग, एंड वो कहता है कि लैला को समझाए तो मजनू को तो ना समझो, समथिंग अलोंग दोस लाइन। वो भी मुझे रेफरेंस नहीं समझ में आया। व्हाई इज ही कॉलिंग हिमसेल्फ मजनू? मजनू, या एंड देन दे बोथ एक्सचेंज स्माइल्स। नो, he had the hots for Layla. हु? Azim. नो, बट और इट्स साद, साद who I says, think साद also has the hots for Layla. वही बात है। but why would they exchange smiles? साद कुछ एंड तो अजीम। है, कुछ तो है। कुछ तो है दया, कुछ तो है। हाँ, इंटरेस्टिंग। interesting. बट हाँ, ये एपिसोड थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। हाँ, थोड़ी टाइटल confusing थी, लेट्स सी absolutely. अगली एपिसोड में क्या Yeah, होता है। yeah. मूविंग थोड़ी- ऑन टू आमना जी, फ्रॉड। जी। तूने क्या सितम तेरे प्यार में हुए रुसवा। क्या कहना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट। वही हुआ ऐसा जैसा हम उम्मीद, we could have predicted, you could have written the ending. I could have written it. Yeah, I would have written a much better ending. Anybody could have written. I mean, this was such a predictable ending. Anybody could have written a much better ending. And हाँ, it was such a predictable ending. It was so blah. I खुदाई कसम fell asleep in the middle. ना झूठ नहीं बोल रही। टीवी लगा हुआ था, मैं सो गई बीच में, फिर मैंने रिवाइंड करके दोबारा देखी। I was so bored because everything was so predictable and कोई उसमें what? I mean,
उसको पकड़ना शज्जी को, जिसने इतनी किस्तों में इतनी लोगों के साथ फ्रॉड किया, उसको पकड़ा ऐसे कि वो एक और फ्रॉड करने जाते हैं और आगे ये सब औरतें खड़ी होती हैं, कहते हैं व्हाट वाज दैट। बड़ी सिंबॉलिक एंडिंग थी भाई। अच्छा ठीक है, आप बता दें मुझे फिर। शान पे हैरानगी हुई, वो कह रहा है जी आईजी को, मैं मेरा दोस्त है आईजी, जी, तू सुत्ते सी पहला। नहीं वो तो करना नहीं चाह रहा था ना माँ पे केस। ही डिडंट वांट टू, ही सेड मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ किस लिटिगेशन पे? माँ पे। और नहीं, शज्जी को तो पकड़वाता ना। मगर उसने कहा ना कि नहीं दामाद है घर का, तो वो तो माँ के लिए उसने छोड़ दिया, वो तो ठीक ही है। सेड। कॉन्टैक्ट्स बहुत है शान के। अच्छा, बट या माइला भी प्रेग्नेंट हो, जो चक्कर आ जाता है माइला को, वो मतलब देखे ना भाई बन बन के। हाँ भाई भाई एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। नायल। नाइल हाँ, भाई उसने वो क्या अच्छा जरूरत ये थी, थेरेपिस्ट नहीं है लड़का। क्या जरूरत थी माइला को प्रेग्नेंट करने की, क्यों ना दिखाने करते की। यार, वो खुशी दिखाइए। यार क्लोजर हो चुका था माइला का कि उसकी किसका? शादी होगी, देयर हैप्पी, आई मीन व्हाई। अगर आपने मायला का क्लोजर करना था ना, और मायला को हमें खुशो खुरम दिखाना था, तो आप उसको तलाल के साथ तलाल तलाल के साथ खुश रहने देते। आपने तलाल को क्यों मारा? अब खत्म हो गया ना ड्रामा। अब तो कोई कह हाँ, नहीं सकता कि आगे चल के देखते हैं इसकी क्या क्या रेलेवेंस थी। कोई रेलेवेंस क्या नहीं। रेलेवेंस थी तलाल को मारने की? मतलब नाइल आपको इतना प्यारा था कि आपने जरूरी था कि इन दोनों में से एक बहन के साथ नाइल की शादी होनी थी। क्या वजह? सिर्फ मुझे लॉजिकली, अगर मैं जंजीबील साहबा से पूछूं ये सवाल कि जंजीबील साहबा मुझे प्लीज बताएं कि आपने ये किरदार इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा किरदार था, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, ससुराल बहुत अच्छा था, सास बहुत, आपने वो मार दिया उसको। जी, तो अक्सर ऐसे कैरेक्टर्स मार दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रामा सीरियल खास जो था सरवत नज़ीर का, उन्होंने कहा था कि जी इसलिए मारा कि हम दिखाना चाहते थे कि एक औरत जो है वो मर्द के बगैर भी रह सकती है खुश, एंड शी इज इंडिपेंडेंट एंड शी इज फाइन। हमारा ये था कि जी व्हाई मस्ट शी बी अलोन टू बी शोन एज हैप्पी एंड इंडिपेंडेंट, दे नीड टू कोएग्जिस्ट। यहाँ भी अगर ये होता, अगर ये कहा जाए कि जी ओ माइला अकेली रह रही है और वो इंडिपेंडेंट है और हम दिखाना चाहते थे कि औरत डजंट नीड अ मैन, तो चलो कोई सेंस बनती। मगर आपने उसकी नाइल के साथ शादी कर दी, जिसको पूरी जिंदगी वो भाई कहती रही है, तो वो क्या तुक था। बिल्कुल सही कह रहे हैं नो रेलेवेंस एट ऑल। 36 किस्तें थी इसकी, जी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैंने जाके हम्म, देखा तो सेकंड लास्ट 34 मुझे नजर आई, तो आई एम अज्यूमिंग 36 किस्तें थी। 36, 37, 35 इनमें से एक नंबर होगा। हम्म, 36 किस्तों का कामना जी। आपने एक कहानी दिखाई, एक फ्रॉडिये की, फ्रॉड ड्रामे का नाम है, फ्रॉड 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 फ्रॉड। कई फ्रॉड ये थे ना, एक शज्जी इसेंशियली फ्रॉड तो था, शज्जी माँ की, भी फ्रॉड थी। इसेंशियली तो शज्जी की कहानी थी ना, हम्म, माँ की तो नहीं थी। हम्म, इसेंशियली तो शज्जी की थी। हम्म, 35 मिनट में हम पहुंच गए, जब 38 मिनट की किस्त में मैंने कहा यार ये इसकी तो रिडेम्पशन, कोई वो कंक्लूजन, इसको तो सजा कुछ भी नहीं हो रहा। हम्म, 36.5 मिनट पे जाके जी पुलिस आती है सडनली और उसको हथकड़ी लगाती है, और 38 मिनट पे ड्रामा खत्म हो जाता है उसी शॉट में। जी। ये आप मुझे बताएं, अब माशाल्लाह सब कंटेंट क्रिएटर्स हैं आप लोग, इतने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, इतने बड़े राइटर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतना माशाल्लाह आप लोग कंटेंट लिखते हैं, देखते हैं, समझते हैं। हमारी तो बिल्कुल जीरो अंडरस्टैंडिंग है आपके मुकाबले में, कंटेंट, ड्रामा राइटिंग, स्क्रीन प्ले, इन सारी चीज़ों को लेके। प्लीज़ टेल अस, प्लीज़ हैव अ चैट विद अस, वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और हमें एजुकेट करें और हमें सिखाएं। By any stretch of imagination, by any logic, does this conclusion make any sense? कि 36 किस्तों का ड्रामा जिसमें एक फ्रॉड बंदा फ्रॉड कर रहा है, और उसकी कंक्लूजन आपने एंड के 120 सेकंड में ये दिखाई कि उसको हथकड़ी लग गई और बस। क्या है ये? मतलब आपको ठंड पड़ी इसको देख के? नहीं, मुझे तो मैं तो कहा कि ये, मतलब व्हाट वाज दिस? it was इट वाज exactly लाइक हमने एक चीज देखी कि अच्छा खत्म हो गई। खत्म हो गई। मुझे अपने ऊपर तरस आ रहा था यार, बेवकूफ आदमी, तूने 35 हफ्ते जो दिए इस ड्रामे को, 36 हफ्ते, हाँ, हाँ, क्या? 40 मिनट अगर जरब उससे करें ज्यादा टाइम माइला की प्रेगनेंसी को दिया गया है, उसकी बर्थडे को, और हाँ उससे ज्यादा दादी को दिया गया रिडेम्पशन को, दादी के रिडेम्पशन को। मम्मी तभी की। तो मैं कह रही हूँ फ्रॉड वो भी तो हैं, उनको तो इक्वल टाइम दिया बट गया के है। फ्रॉड तो उनके ऊपर ज्यादा ड्रामा ना, फ्रॉड, हाँ टिटिलर कैरेक्टर तो मेरे वो ख्याल है है, टिचुलर कैरेक्टर वही है बिल्कुल। उनकी दिखाई है, उनको हार्ट अटैक हो गया, उन्होंने जी, माफी मांग ली, उन्होंने कहा बेटा मुझे माफ कर दो, वो नहीं बेटे किया के घर गई, हाँ, सब कुछ हुआ, वो स्टेप सिस्टर बहन ने कहा कि कि मैं तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे माफ हाँ। कर दे, सब कुछ हुआ। ये क्या मतलब व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस? What was the point of the entire drama? I am asking you. So a lot of dramas just don't know how to draw a conclusion.
which is why मुझे याद आ रहा था कश्फ जो ड्रामा था हेरा मानी का, उसका कितना अच्छा लास्ट एपिसोड था कि इट बिल्ड्स अप टू द लास्ट एपिसोड, और लास्ट एपिसोड में आपका कंक्लूजन होता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्डअप भी लास्ट एपिसोड में, कंक्लूजन भी लास्ट में, रिडेम्पशन, रिमोर्स, हर चीज उसका बड़ा खूबसूरत बिल्डअप था, मुझे याद आ रहा था। बट मोस्ट ड्रामास डोंट नो हाउ टू बट वाइंड अप। मैं प्रीएम्प्ट अगर करूं जवाब, तो उन्होंने आगे से कहना क्या और क्या कंक्लूजन होती, क्या होता और यही होती, बट बिल्डअप ज्यादा होना चाहिए था, कोई क्लाइमैक्स होता, देयर वाज नो क्लाइमैक्स, द क्लाइमैक्स वाज एंटी क्लाइमैक्टिक। यही क्लाइमैक्स है ना, सब लड़कियां इकट्ठी हो गई, उन्होंने देखा कि नहीं जिस लगा। बंदे ने उनके साथ ज्यादती किया वो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और कितने लोग मरे हैं उसकी वजह से, क्या क्या हुआ, आप उसको उसकी बहुत लंबी मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ क्लाइमैक्स वर्ड को लेके, बट फिर डिस्कशन जो है वो कुछ ए रेटेड हो जाएगी। कर लें, क्या फर्क पड़ता है, ए रेटेड डिस्कशन PG-18 डिस्कशन है भाई, मूविंग फॉरवर्ड। I mean, बोल नया साल न्यू यू। नया साल न्यू मी। I mean, it was such a post climax. It was like completely. Premature ejaculation हो गई। It was When absolutely. somebody's really It was an American Pie climax. Completely. Let's talk about. Let's just say that. It didn't build your anticipation कि अच्छा कुछ होने वाला है, इसके साथ होने वाला है। वो एकदम होता है, खत्म हो जाता है, you're like, hey, what happened? What the hell happened? It was so bad. It was just so bad. I fell asleep, yaar. I mean, who falls asleep during a climax? I fell asleep. It was that boring, really. It was that bad. More than anything else, it's just sad. It's just sad, yeah. You have these veteran actors, you have these fantastic performers, whether it's Sabaa Kamar or whether it's Ehsan Khan or whether it's the supporting cast, you know. It's as if deadline आ गई एकदम, यार आज हमने ये ड्रामा खत्म करना है। आज ड्रामा खत्म कर, क्योंकि हम बहुत जाया कर चुके हैं पहले। अब आज अभी वो खत्म करना है। मुझे समझ नहीं आती, दरार अभी हमने रिव्यू किया है जियो पे, वो घसीट रहे हैं, एंड में मतलब खत्म हो गया। मैं वही कह रही हूँ ना, lot of dramas don't know how to conclude. मुझे They तो शक spend पड़ा more कि time with Shaji's friend bringing the रिश्ता for that girl and her saying कि मैं एयरपोर्ट जाऊंगी उनको लेने, क्या दुख था उसका? मैंने कहा शायद कोई एयरपोर्ट पे कोई इंटरसेप्शन हो पुलिस की और वहां पर अरेस्ट करें या whatever, बट क्या दुख था उसका? नॉट अ सिंगल वर्ड। ये ऐसे हमने फिल्में बड़ी देखी हैं, आमना आपने भी बड़ी देखी हैं, कैसे हुआ हो कि एंड में विलन अरेस्ट हो रहा हो और विलन ने एक लफ्ज भी ना बोला हो। विलन ही है ना, नेगेटिव किरदार है एहसन का, Yeah, of course. एंटागनिस्ट है। ये देखिए गुड पॉइंट आपने निकाला ना, उसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया। ये अच्छी बात है। बोल ही ना कुछ, बोल ही ना कुछ। ऐसे नहीं बगा, चलो 2 मिनट है आखिरी के, ना 30 बोलो सेकंड तो है, खैर है। कोई बात नहीं। मैंने बहुत बोल लिया पूरे हाँ, ड्रामे में, पूरे ड्रामा में 120 सेकंड में नहीं बोलता। डिसअपॉइंटिंग था, it was very disappointing. प्लीज यार प्लीज हमें तो छोड़ दें, नहीं, हमारा तो जॉब है। आप क्यों प्लीज कर रहे हैं? शायद नहीं है उनके बस में। नहीं मैं कह रहा हूँ हमारी तो जॉब है ड्रामे देखना और करना, तो हम तो अपनी, लेकिन वो लोग जो इतना इन्वेस्ट करते हैं आपके कंटेंट में, देखते हैं And it was a good story. It was a good theme. It was हम इतना खुश हुए हमारे शुरू के फ्रॉड के रिव्यूज निकाल के देखें जरा सब लोग, इतनी हमने तारीफें की यार। हम इतने हमें था कि there is a promise of a new story, of a new treatment, all of that. Nothing. कितनी बार हम आमना इस ये टीका हमें लग चुका है। बस अभी तो अब आ जाएं अब अगले ड्रामे पे। चलें फाइनली फाइनली जी, तेरे बिन। जी आमना क्या कहना चाहिए? जी आप पहले वो कर देना, उसकी डिटेल्स, क्रेडिट्स दूं मैं? क्रेडिट्स आप पहले दे दें। तेरे बिन को जी इट्स अ सेवन स्काई प्रोडक्शन जी, जो कि अगर आपको शक था होना नहीं चाहिए तो पहली फ्रेम में आपको पता बट चल आपको पता लग जाता है जैसे ड्रामा शुरू होता है। दैट्स अ गुड थिंग बाय द वे, आई विल टेल यू व्हाई। सेवन स्काई की प्रोडक्शन है, अब्दुल्ला कादवानी साहब ने और असद कुरैशी साहब ने प्रोड्यूस किया है। इसको डायरेक्ट किया हमारे बहुत ही चहीते सिराजुल हक साहब ने। जी, सिराज भाई बहुत अभी रिसेंटली बड़े बड़े ड्रामे दे चुके हैं। फितूर उन्होंने डायरेक्ट किया, राज़ उल्फत उन्होंने डायरेक्ट किया जी, और इसको लिखा है नूना NOORAN जी। तो मैं पिछली बार भी माजरत की थी, दोबारा माजरत करूंगा अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट आई विल फाइंड आउट व्हाट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज। नूरान मखदूम ने, राइट। और इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं वहाज जी, अली, जी, युमना जैदी, बुशरा अंसारी साहबा, जी, सुहेल समीर साहब, जी, फरहान अली आगा, जी, फजीला काजी साहबा। जी।
इसके अलावा आपको सबीना फारूक है, जी हीरा सोमरू हैं, जी जिनको अभी तक हमने देखा है। जी बिल्कुल। अब मैं इसको बड़ा ही एक टेक्निकल सर्जिकल तरीके से बिट बाय बिट डाइसेक्ट करके डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि वक्त है हमारे पास आज, अच्छा बहुत है। बहुत वक्त है। पहली बात तो ये है कि प्रोडक्शन वैल्यू इज़ वेरी हाई, जो कि अमूमन ही सेवन स्काई की होती है और ये अच्छी बात है। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है। दो शहरों में की कहानी है, हैदराबाद और कराची। शूट ऑफ कोर्स कराची में ही हुआ है सारा, और हमारा मीर हाउस जो है फेवरेट वो दिखाया हुआ लेकिन हैदराबाद में है। सो और गांव भी, गांव भी है। गांव हाँ, हैदराबाद के आगे गांव। गांव एग्जैक्टली। तो वो जो पूरा एरियल शॉट्स हैं आपको नजर आता है कि हाँ भी इनकी जमीनें हैं, इनका घर कितना बड़ा है, इनका रहन सहन, इनकी गाड़ियाँ, इनका पहनने का तरीका, इनका रहने का तरीका, वो आपको पूरा पूरा कन्विंस करता है कि ये कितने कितने खाते पीते खानदान के लोग हैं। और जद्दी पुश्ती जैसे कहते हैं ना कि नवाब, वो लग रहा है कि वो। एंड यू कैन आल्सो से टेल बाय द वार्डरोब। सोहेल समीर का जो कैरेक्टर है, चचा साहब जो है चचा साहब। चचा साहब का जो वार्डरोब आपको नजर आ रहा है कि भाई चचा साहब ने ठीक ठाक कपड़े पहने हुए हैं। ऑल्सो वहाज का वार्डरोब जो है, बुशरा अंसारी भाई। बुशरा अंसारी, तो वो आपको नजर आ रहा है कि जी पैसा लगा हुआ है प्रोडक्शन पे और ये बहुत अच्छी बात है। सो पहली चीज तो ये टिक मार्क, उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता मैं इस है। पे एक बात ऐड कर हाँ दूं, हाँ, दो अगर बातें ऐड, आपकी परमिशन आप हो दो तो। बातें ऐड करें। यार ये सेवन स्काई को बहुत ज्यादा इस बात का क्रेडिट जाता है। हम अभी रिसेंटली ही बहुत सारे ड्रामे देख रहे हैं, बल्कि मैं नाम लूंगा। हमने बख्तावर हम जी देख रहे हैं, कैसी तेरी खुदगर्जी हम देख रहे हैं। आपने तब भी बात की जी। थी अतीका ऑटो साहब जब गाड़ी में जा रही होती हैं, और आपको ड्राइवर यहाँ से ड्राइवर। मोड़ लो। हाँ ये हम बहुत सारे ड्रामे देखते हैं दूसरे चैनल्स के ऊपर भी, बट जियो को इस बात का जरूर क्रेडिट जाता है यार कि वो अपना हाथ रोकते नहीं है। आप वो जो सिराज भाई भी बात करते हैं ना, 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम देखना चाहती है, वो ड्रीम दिखाते हैं फिर, और वो अपने हर ड्रामे में नहीं, वो दिखाते हैं। फैंटेसी को एंड पे लेके वो जाते हैं। लेके जाते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। आप गाड़ियां देख लें, आप उनके वो जो अमीर हाउस, हम बहुत ड्रामे देखते हैं शूट हुए। जी मुझे इस बार थोड़ा सा डिफरेंस लगा उसके हाँ। एस्थेटिक में, जिस तरह आई से विश कि ना किया होता, ना बिकॉज कि बहुत बट देख इतने लिया है। ग्रैंड, वही बात है कि स्विमिंग पूल भी है और गार्डन्स भी हैं और ग्रैंडनेस भी है, तो वो ग्रैंडियर वो पे आपको ग्रैंडियर आप कहाँ से फिर वो हाँ लेके आए? हाँ तो वो सारी, फिर आपने जैसे कपड़ों की सबकी बात की, आप देखें यार कोई ऐसा किरदार लग रहा है कि जो शक्ल देख के आपको लगे कि यार ये वो नहीं है जो ये एग्जैक्टली प्रिटेंड कर रहा है या जो ये एग्जैक्टली है। तो ये बिल्कुल। बातें बहुत अच्छी हैं, और इन बातों को हम अक्सर जो बाकी के ड्रामे वो इतनी इनपुट नहीं और एफर्ट नहीं डालते इनके ऊपर, तो अब इसलिए मैं दोबारा मेंशन। कैसी तेरी गुजरती पे अगर आप चले जाएं तो जिस तरह भाभी होती है, उसकी जो ज्वेलरी होती है, आपको नहीं लगता कि ये किसी बहुत अमीर खानदान की है, मगर यहाँ पे सबका जो है ना रहन सहन, यार वो जो लिबास दो वगैरह, कंगन, दो मेरा इतना नहीं कंगन पता, जो 2 कंगन उतार के जी उन्होंने जी दिए हैं, आप वो असली बताएं। लग रहे थे। हाँ 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 वो पता हाँ पता लग रहा था कि वो भाई दिए हैं कंगन, एब्सोल्युटली। तो कोई चीज है जो दी है जी उन्होंने। जी 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 बिल्कुल। तो सो ये तो वेल डन। ये तो वेल डन। सेकंड चीज पे आप आ जाएं राइटिंग पे, स्टोरी पे। स्टोरी का ये कि ट्रोप्स जरूर हैं, ट्रोप्स जरूर हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा कजन मैरिजेस, उसकी बात हो रही है। फिर जो कैरेक्टर हया का दिखाया हुआ है कि वो वन साइडेड ऑब्सेसिव लव, जो कि हया बेटी किसकी है? नहीं पता चला। वन साइडेड चचा जी ऑब्सेसिव नहीं है? लव, चचा तो एक ही है, चचा साहब। हाँ तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसकी बेटी है। अच्छा, नहीं ओके। नहीं बेटियों की समझ नहीं आ रही कौन किसकी नहीं है। नहीं, आ गई है समझ, आ गई है, वाक्यों की आ गई है। तो ये है कि ट्रोप्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और द होल अग्रेसिव हीरो, उसकी भी ट्रोप है। लेकिन जहां आपको स्टीरियोटाइप्स मिल रहे हैं वहां पे देयर आर फ्रेश एलिमेंट्स एज वेल। पहला फ्रेश एलिमेंट तो ये कि जो आपका हीरो है, नाम बताएं। मुर्तसिम। मुर्तसिम जो है वो है एंटाइटल्ड, वो है अग्रेसिव, वो है बदतमीज, लेकिन उसकी एक सॉफ्ट साइड भी है। ओपनिंग सीन में वो दिखाते हैं कि वो जायज करने जाता है किनके पास, मलिक साहब, मलिक साहब के पास। प्लेड बाय हाँ, महमूद असलम साहब। प्ले बाय महमूद असलम साहब के साथ। तो वो ही इज देयर टू डिलीवर सम काइंड ऑफ जस्टिस, रेट्रिब्यूशन, हाँ। जस्टिस टू हिज पीपल, वो भी है। फिर सेकंड केस में हम देखते हैं कि जब वो जाता इसकी है, बात करें हाँ या हाँ बाद में करेंगे? बाद में करते हैं ना, अच्छा, एपिसोड बाद में आते हैं। मैं अभी उसकी बात करी राइटिंग की, किरदार राइट। किरदारों की। जब वो कराची आता है और मीरब को पिक करने आता है तो साइमा मिलती है उसको, साइमा बाजी। वो हाँ, पूछता है आप कैसी हैं, आपकी तबीयत, मतलब सो ही हैज दैट लिटिल बिट ऑफ अ जेंटल स्ट्रीक एज वेल। पागल नहीं है। है काफी पागल है, केक आ, सीन पे अगर आप जाएं तो पागल भी काफी है। तो वो तो अच्छा केक सीन था फिर। बहुत तुझे बर्थडे मनानी है LFL ना। तो ये मतलब है कि वो पागल है, पागल है। हाँ, लेकिन ऐसा ही डजंट लाइक रॉबिन हुड मीरब, पागल है। ही डजंट लाइक मीरब। हाँ वो कह रहा है कि मैं भी नहीं शादी करना चाहता। बाद में तो ऑफ कोर्स दोनों ही करना चाहेंगे, लेकिन तो ये अच्छी बातें हैं, हाँ, ये अच्छी बातें हैं।
दूसरी चीज ये कि राइटिंग में आपको इंट्रीग वैल्यू मिल रही है कि मतलब है कि चचा साहब की बेटी तो है फिर नीरब, हाँ और वो पाला है अनवर साहब ने, जो नेबर थे और हाँ दोस्त थे, हाँ। तो क्यों पाला? अच्छा, पहले ये मुझे थोड़ी बात अनबिलीवेबल 2 काउंट्स पे लगी। हाँ पहला काउंट तो ये कि पहले जब इन्होंने हमें ये हिंट नहीं दिया था, हिंट क्या, आपने ऑब्वियस कर दिया है कि ऑब्वियसली अनवर की बेटी है। हाँ बट आपने शुरू में जब ये कहा ना कि जी वो अनवर और मुर्तसिम जब जा रहे होते हैं गाड़ी में और वो कहता है कि यार यू नॉट दे नॉट इवन रिलेट टू अस, या कोई खूनी रिश्ता नहीं है, आपके नेबर हुआ करते थे और हाँ। आपके दोस्त थे, उनकी बेटी आगे से, तो मतलब हम क्यों इतना कर रहे हैं? WTF, राइट? हाँ, तो आपको मैं पता चल जाता मैंने है। कहा यार कि हाँ, मतलब इतना नेबर की बेटी के ऊपर इतना क्यों ओहो, तो यही तो इंट्रीग वैल्यू बिल्ड होने वाली बात है कि आप सोचते हैं कि यार देयर हैज टू बी मोर टू इट देन, है? देयर हैज टू बी मुझे मोर नहीं टू इट। समझ आई थी तब। अच्छा, व्हेन ही सेज ना कि मेरी भी तो बेटी, तो मैंने कहा अच्छा, नहीं तो आ ये गई थी सीन उस है। वक्त गाड़ी के सीने से। बट चलो ये आपने क्लियर कर दिया कि अब मैंने कमेंट सेक्शन में देखा तो किसी ने लिखा था आई थिंक मीरब इज अनवर्स डॉटर, आई थिंक नहीं, शी इज और नीचे जो है 50-60 लोगों ने कहा रियली, कैसे लगा? क्यूट। यार क्यूट, आप लोग जो ड्रामा देखते हैं, खैर वो हमारा रिव्यू नहीं देखते होंगे जो ड्रामा देख रहे हैं, बट मुझे बड़ी क्यूट लगी बात। इट्स क्वाइट ऑब्वियस quite कि obvious. मीरब अनवर की ही तो बेटी है। मेरा अपना डिडक्शन ये है कि देखिए अनवर साहब की बीवी नहीं नजर आ रही, नहीं आ रही, तो बीवी जो है वो शायद चाइल्ड बर्थ में फौत हो गई हो, बिकॉज बच्चा भी उनका नहीं एक हो ही है। सकता है आउट ऑफ वेडलॉक हो, मैं सोच रही हूँ, हाँ एग्जैक्टली, तो बीवी तो नहीं है। जिस तरह के वो हैं, हो सकता है असॉल्ट कर दिया हो किसी को, वो भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। तो वो बच्चा तो पैदा हो गया और बच्चे को फिर नेबर्स को दे दिया जिनका बच्चा नहीं हो रहा था। बट कोई डील हुई है, हाँ, उन्होंने कहा जी वापस करनी थी 21 साल तुमने, पहले डील हुई है। हाँ उन्होंने कहा वापस करनी थी। बिल्कुल। तो अच्छा, नहीं, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, चलें ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि अनवर की बेटी है और वो, हाँ, बट वो क्यों नहीं क्वेश्चन करी लड़की क्या? कि यार कि नहीं वो करती है, बट उस नहीं सतही वो तो तौर पे उसको करती है। बचपन से देखा ही उसने, ये है वो करती है क्वेश्चन कि यार बचपन से मैं ये देख रही हूँ कि ये हमारे डिसीजंस करते हैं, व्हाई? नो नो, शी इज क्वेश्चनिंग इट। उस तरह का नहीं, लेकिन आप जेनेटिक सिमिलैरिटीज देखें, वो बिल्कुल मुर्तसम जैसी है वो, व्हिच इज व्हाट आई लव्ड अबाउट इट, कि वो ऐसा नहीं है कि वो बेचारी सी बैठी हुई है सर पे दुपट्टा लेके मिस्कीन सी, हाँ, बिकॉज हर सर पे दुपट्टा वाला बाकी कैरेक्टर दो की मिस्कीन नजर होता भी है। आ रही हैं आपको। नजर आ रही हैं, ये अग्रेसिव है, और ये जितने टेस्टोस्टेरोन मुर्तसिम में पंप हुए हुए हैं उतने इसमें भी हुए हुए हैं, और मुझे इनका जो है ना टाकरा वो मजे का है। मुझे इनका टाकरा देख के मैंने कहा दिस इज सुनो चंदा ऑन स्टेरॉइड्स। टोटल टोटल मतलब अगर सुनो चंदा को सीरियस कर दो ना, बिल्कुल बिल्कुल उन दोनों को अग्रेसिव कर दो। अग्रेसिव कर दो, हाँ, तो ये वो है, ये क्योंकि वो है। केमिस्ट्री इनकी वही है, हाँ मतलब वो लड़ रहे हैं हाँ आपस में, हाँ, बट इट्स एसेंशियली कैट एंड माउस। उनकी तो लेकिन डे वन से लव हेट है ना, इनका सिर्फ हेट हेट है। हाँ, और आप नहीं सोचते उनका हैं भी लव तो कहीं नहीं था, नहीं उनका था, भी वी हेटेड। स्टिल न्यू, नहीं खैर नहीं, यहाँ भी यू नो, बट आर यू वंडरिंग व्हेन यू वॉच देम कि यार व्हाई डू दे हेट ईच अदर सो मच, यू नो, इतने एग्रेसिव क्यों है? क्लैश ऑफ ईगोज है ना। ऐसा वैसा, तो ये अच्छी चीज है, ये देख के मजा आया मुझे। हाँ, इसमें वो नहीं है कि वो लड़की को बांध दिया लड़के के साथ, हाँ नहीं इसमें नहीं, लड़के को भी बांध दिया, बांध दिया। लड़के और लड़की दोनों को बांध और वो दिया। कहता है प्रोमो में कि यू नो आप ज्यादती कर रहे हैं, मेरे साथ मत बांधे उसको। हाँ, मेरा तो ख्याल था आप पसंद करते हैं उस बच्ची को, तो डोंट यू नो अब ब्रिंग वो हर इन कहता है माय ना, लाइफ, मैं तो चाहता नहीं तुम यहाँ पे हो, कहती है बर्बाद अच्छी हो मेरी भी जाएगी। यही चाहत है, हाँ, वो आगे से उसको पलट के ये पलट कहती के है मेरी भी देती यही है, चाहत है। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है सारी। फिर दूसरी चीज ये कि जहाँ आप अनवर चाचा जैसा एक बहुत ही शोविनिस्टिक मेल देख रहे हैं, मेट्रियार्क जो है वो भाभी बेगम है, भाभी बेगम, अम्मा बेगम, अम्मा बे नहीं माँ बेगम, भाभी है। नहीं बच्चियां क्या कह रही थी, माँ बेगम या समथिंग, बच्चियां नहीं कुछ और कह रही थी, माँ बेगम, माँ बेगम, माँ बेगम, माँ बेगम, यार ये नए नए निकाल लेते हैं, हाँ, माँ बेगम। माँ बेगम जो है वो मेट्रियार्क है, और आपका ये आपको नजर आ रहा है कि शी कॉल्स द और शॉट्स। बुशरा जी लुकिंग वेरी गुड। सुपर्ब यार, सुपर्ब, लव इट, लव यार। बुशरा अंसारी इज सच अ वेटरन, वो जिस भी रोल में जाती हैं, आप उनको साइमा चौधरी निकाल लें आप फ्रॉम द बारात सीरीज, और यहाँ पे आई मीन वो लगता है जैसे कि वो जद्दी पुश्ती अच्छा, एक इट्स है नॉट ना। अ मॉकरी ऑफ अ नो पेट्रियार्क, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जैसे हमें बादशाह बेगम कहीं पे लगा, ये सही वाली लग रही है। नहीं, और दूसरी वो चीज जो सीन था कब्र पे, हाँ, मैं तो आ गई हूँ, मेरा ये क्या घर, मेरा वो भी मेरा बंदा तो यहाँ पड़ा है, मैं घर जाके क्या बात करूंगी, वो you बड़ा know? खूबसूरत ब्लैकमेल का हाँ टैक्टिक था, हाँ पावर मूव थी, हाँ। और बड़ी वेल एग्जीक्यूटेड। आपको थोड़ा सा अनरियल लगा कि मेट्रियार्क इतनी स्ट्रांग है इस घर में जहाँ पे इतने स्ट्रांग मेन है? नहीं, वो उनका कल्चरल ट्रेडिशन अगर चला आ रहा है, एक उनकी वैल्यूज इस तरह की चली आ रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कल्चरल ट्रेडिशन चल रहा है, सिर्फ ये कि वो बड़े भाई थे इनके हस्बैंड, क्या नाम था उनका, शाहनवाज, शाहनवाज खान जो थे वो बड़े भाई थे,
और वो जब फौत हुए तो उनकी हो सारी सकता है भाभी ने पाला हो, जैसे बहुत सारी भाभियां यंग अपने जो देवर होते हैं उनको पालती हैं, बड़ा बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, प्लस उनकी बीवी भी नहीं है कि वो टाकरा तो तब हो ना। हाँ लेकिन वो फिट बड़ा बैठी हैं वो। हाँ और अच्छी बात ये है कि वो भी एक इलॉजिकल सी कैरेक्टर नहीं है कि वाइल्ड खेल रही है, इतनी बुरी भी नहीं है। जब वो शादी की बात करती है तो वो कहती है कि मैंने कुछ गलत बात कर दी, मतलब है कि शी इज नॉट ऑल बैड। नहीं, वो जैसे हमें पता है कि वो मानती आ रही हैं बातें। हाँ हाँ वो कहते हैं ना कि अनवर कहता है कि वो मुर्तसिम कहता है कि वो अम्मा माँ बेगम से बात करेंगी, वो मान जाएंगी, फिर आप अपना टका सा मुंह लेके रह जाएंगे। तो कहता नहीं, इस बार मैं वादा करता हूँ वादा करता हूँ। कि लॉयर नहीं और बनूंगा। मुर्तसिम का एक और अच्छा रुख नजर आता है जब वो कहता है कि जब वो नहीं आना चाह रही तो व्हाई वुड यू वांट टू ब्रिंग हर हियर, हाँ, तो लॉजिक है मुर्तसिम में भी। और इन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ये फिलहाल के लिए हाँ टॉक्सिक वो नहीं है। नहीं नहीं, एंटाइटल्ड बदतमीज जरूर है, वो तो बदतमीज दोनों बदतमीज हैं। दोनों बदतमीज हैं, लेकिन बदतमीज बेतहाशा है। दो बदतमीज हमें ज्यादा पसंद है, वन बदतमीज से ज्यादा। एब्सोल्युटली हाँ, मतलब वो नहीं है ना। अब जैसे आ जाए यमुना की मीरब की हाँ तरफ, तो वो ऐसी बेचारी बिल्कुल भी वो नहीं, नहीं है कि अच्छा डरी बल्कि सहमी। थोड़ी ज्यादा ही ओवर है। मैं कहने लगा था मुझे अनोइंग लगी। हाँ ओवर थी वो थोड़ी सी। जो हाँ, शुरू की किस्म में मीरब। मीरब, ये शुरू की किस्म में मीरब जाके साइमाबाजी के उसमें करती है, हाँ वो थोड़ा सा अनोइंग था कि भाई सड़क पे जाके कौन किसी को उसना मारना हाँ शुरू कर देता है। हाँ। आप कॉल करें उसको कहो घर पहुंचो मैं तुमसे बात करनी है, बट मीरब अनोइंग थी। वो जो प्रीची प्रीची हो जाता है ना, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ हाँ मीरब अनोइंग थी हाँ, फॉर श्योर। तो ये है। बट यमुना को अच्छा लग रहा है एक ऐसे रोल में देख के हाँ जिसमें बेचारगी नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बख्तावर अभी बिल्कुल रिसेंटली बिल्कुल। हमने देखा। जी ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत प्रेशर हो। जी अच्छा, एक मजबूत रोल है, हम्म मजबूत फीमेल किरदार है, और वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। मगर मुझे लगता है कि अभी तो खैर इट्स टू सून टू से एनीथिंग एंड आई होप कि आगे जाके आई एम प्रूवन रॉन्ग, मगर जितनी मजबूती बैलेंस के साथ यमुना ने दिखाई थी इन सिनफे आहन, हाँ, वो यहाँ मुझे नजर नहीं आ रही। यहाँ मुझे लग रहा है जैसे ये कैरेक्टर जो है ना ये थोड़ा अनोइंग होगा और थोड़ा सा शायद कैरिकेचराइज हो। तो ये फर्क है ना। दो प्लेटफॉर्म भी तो मुख्तलिफ है ना। जी जी और डायरेक्शन का फर्क है, डायरेक्शन का भी फर्क है। डायरेक्शन का फर्क इसमें है। हर चीज ओवर द टॉप है, हाँ एग्जैजरेटेड है, हाँ ज्यादा एनिमेटेड है। तो ऑब्वियसली मीरब के एक्शंस और मीरब का जो जी सारा जी वो है गेटअप गेटअप, वो भी एग्जैजरेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बट माँ बेगम के दो बच्चे हैं, मरियम हाँ एंड मुर्तसिम, हाँ, है ना? मरियम प्लेड बाय हीरा सोमरू। यस। ये नहीं समझ आई कि हया किसकी हया होगी। किसकी बच्ची है? और हया ऑफ कोर्स एक अदद पुर्जा उन्होंने हर स्टोरी में डालना होता है जो कि हीरो पे मर मिटी हो, बस उसके पास मतलब है कि उसको और कुछ नजर ही नहीं आता, जबकि उसकी हर बंदा उसको डिस्करेज कर रहा है। हाँ माँ बेगम भी डिस्करेज कर रही है, सबसे बड़ा मुर्तसिम उसकी हर वक्त बेइज्जती कर रहा है। हाँ। गेट आउट शट अप। आई मीन इट वाज वेरी नेचुरल। मुझे मुर्तसिम बुरा नहीं लगा। मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हाँ बुरा नहीं लगा क्या हाँ मतलब? उसमें कोई एग्जैक्टली ऐसी बात है ही नहीं। नहीं नहीं वो ऐसा वो नहीं ऐसी बात क्यों नहीं है भाई, बदतमीज इंसान है क्या? यार। जिस तरह वो बर्थडे जाके उसको घसीट के लेके जाता है या उसको केक खिलाता है, बदतमीजी होती है वो। पढ़े लिखे लोग कौन ऐसे बिहेव करता है? वो तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया ना कि वो एक है आपको ही। दरअसल आदत है ना, मतलब पंजाबी होने की वजह से, मैं भी पंजाबियों में ही कह सकती हूँ क्या? कि पंजाबियत की आदत है ना कि थोड़ा बहुत चल जाता है, नहीं चलना चाहिए भाई, बदतमीजी नहीं चलनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो लड़की आगे से इस तरह की होती तो नहीं कोई अगर वगर की बात नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो बहुत एक बदतमीज आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी बदतमीज है लड़की, उसमें भी कोई शक नहीं है। दैट डजंट मेक इट राइट। टू मैंने रॉन्ग्स डोंट डिफेंड मेक तो इट। नहीं किया। बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं, नहीं मुस्कुराहट मैं देखिए आप जरा, नहीं इट्स लाइक यू आर सो प्राउड ऑफ मुर्तसिम। नहीं, मैंने नहीं डिफेंड किया। मुझे एक्चुअली चले आ जाते हैं मुर्तसिम पे। नहीं अब मुझे आप स्टोरी पे आ जाना। मुर्तसिम का पहले सीन पे हाँ मैं पहले पहले सीन, सीक्वेंस हाँ में मैं हाँ जा रहा हूँ जहाँ से ये ड्रामा शुरू होता है। हाँ आई हैव टू से, जब मैं 15-16 मिनट पे पहुंचा हूँ ना ड्रामे के, जब तक बुशरा अंसारी साहबा का किरदार आता है बाहर, मैंने कहा यार दिस इज गोइंग गुड भाई, हाँ ये तो मजे का ये सीन तो चल रॉबिन रहा हुड है, है। ये तो है गुड सीन चल रहा है। और वो उसमें लार्ज पार्ट क्रेडिट जाता है पहले सीन को, जी एंड उसमें सिराज भाई की ऑब्वियसली बहुत एफर्ट है जी और वहाज की भी बहुत जी एफर्ट है, और महमूद असलम साहब, जितने लोग उसका हिस्सा थे। आप पहला देखें शॉट, एरियल वो शुरू है। एक तो हर ड्रामे सारे एरियल शॉट से शुरू होते हाँ हैं, बट ड्रोन चलो मिल गया इनको हायर वो रेंज। वहां से ड्रोन से उन्होंने लिया, वो नजर आई ये फसल, वो आता है और वो पूछता है जी फसल वो जी उगी, फिर वो अपनी सैड स्टोरी बताता है कि जी वो आया था मलक का बंदा बेटा, कहता है मैं तुम्हारी बच्ची को उठा लूंगा। वो कहता है ओहो the good thing is that Vahaj looks good, he looks यस the part, यस he's worked on his body obviously, यस यस physique, ही इज लुकिंग he फिट। he looks fit, and ऊपर से जो कपड़े शपड़े पहने और हुए वो है। मूंछ भी थोड़ी सी
बल ताउशा दिया। ताउशा दिया हुआ है। फिर आपने पूरा जो दिखाया कि पीछे रीवो में गार्ड शार्ड आपके बैठे हुए हैं, वो जाते हैं बंदूकें तान लेते हैं और वो अंदर जिस तरह से जाता है वो बहुत वेल एग्जीक्यूटेड सीन था। नॉट लाइक बख्तावर। नॉट लाइक आप देखिए बात वही होती है कि जो आप विजुअल आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ना उसकी सीरियसनेस कन्वे हो जी कि यार कि दिस मैन मींस बिजनेस बिजनेस या और वो आपको लगता है कि वो आगे से और उसका क्रेडिट सबको जाता है कि मैं इस ड्रामे के बाद ना वहाज विल एंड अप इन द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों? मैंने बड़े गौर से 2 किस्सें देखी। अच्छा कितनी देर जो मुतसिम का कैरेक्टर होता है वो गुस्से में कितनी देर होता है पूरा टाइम? 100%। सिर्फ 1-2 सीन थे जिसमें वो गुस्से में नहीं था, जब वो माँ से बात कर रहा हाँ। था, वो बाकी वो 100%। जब वो गुस्से में होता है ना, he doesn't blink. He has not blinked once. अच्छा हाँ, मैंने बड़े गौर से देखा कि झपकेगा कब आंखें, वो आंखें नहीं झपकता मुतसिम। अच्छा Anyway, back to it. वेल डन वाज। Trivia, हाँ। मुतसिम doesn't blink when angry. हाँ, चलो लेट्स ऑल नोटिस नाउ हाँ। कि व्हेन विल he blinks when he's happy. ठीक तो है anyway, बड़ा well convinced conveyed था। वेल हाँ, और वो आता है बैठता है गन वन निकाल के उसको कहता है कि भाई अगली बार तूने मर्द बन मत बन। वरना तो वो जो थ्रेटन करके सारा कुछ गया है वो समझ में आता है कि भाई हुआ है वो लगता है कन्विंसिंग लगता है। क्योंकि आगे जो एक्टर्स थे उन्होंने भी उसको वैसे ही परफॉर्म किया। जी। अब महमूद असलम साहब जैसा का किरदार उन्होंने निभाया वो कोई ऐसे टटपुंजिया विलन नहीं लग रहा था नहीं आपको। नहीं 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 वो प्रॉपर एक हाँ। उनका बड़ा एक रोब दबदबे हाँ, वाला हाँ, किरदार खान्स वर्सेस मलिक जो था ना मलिक्स तो वो प्रॉपर वो सीन था। हाँ, तो वो उनके जो चेहरे पे आगे से तासुरात थे जो बाकी एक्टर्स थे हम्म, वो कन्वे हुए हैं कि यार जी, कि ये बिल्कुल। बंदा आगे कुछ हिला के गया है। बिल्कुल तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यार वो हर बंदा वो पिच इन करे और वो एफर्ट दे टू मेक दैट सीन इम्पैक्टफुल। तो वो वहां से शुरुआत हुई। एब्सोल्युटली फिर बुशरा अंसारी वाला सीन वो भी बड़ा बहुत जबरदस्त सीन था जबरदस्त सीन था। जो वो तू मैं जी। कर रही होती है और उसमें वो नहीं था। वो सीन की खूबसूरती ये थी कि वो बहुत एग्जैजरेटेड नहीं था नहीं कि वो आगे से बोलेंगे नहीं डस डूस डूस जज हो रही थी वैसे। बट इतनी नहीं हो रही। तुमने कहा नहीं बस ये है आपस में सॉर्ट आउट कर लो। हाँ। तुम मुझे शक्ल से तुम लग रही हो कि तुम झूठी हो। एग्जैक्टली हाँ खत्म हो गई बात। हो गई। फिर हम आए जो सबीना के किरदार से हम इंट्रोड्यूस हुए हया से। मुझे वो भी एक्टिंग अच्छी लगी। हया मुझे अनोइंग लगी। अच्छा हया मुझे अनोइंग लगी बिकॉज हया वही बात है ना कि आप नहीं देखना चाहते ऐसा किरदार। आप ऐसी फीमेल कैरेक्टर नहीं देखना चाहते जो कि मर मिटा है या इवन मेल कैरेक्टर। हमारे तो हर ड्रामा में कोई एक ऐसा किरदार बट मुझे होता है। तो नहीं लगा वो उसको तो वो चाहिए तख्त किसको? हया को। तक तो नहीं और वो तो मिलेगा। कहती भी है रोमांस खराब कर दिया जब अम्मा बेगम नहीं आती तो है। रोमांस चाहती है वो मर बट मिटी वो है। चाहती तख्त है नहीं वो essentially। मेरे हमनशीन गारी होती है वो तख्त चाहती हाँ है। बट इट्स नॉट अ वो both वाला। no it's both things। इट्स आल्सो नॉट वेरी स्मिटन। मुझे तो जिमी याद आ गया बस मी फीमेल वर्जन ऑफ जिमी थी ये। नहीं 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 बहुत फर्क है। मुझे फीमेल वर्जन नहीं ऑफ जिमी नहीं लगी यार यार। ऐसी जाती ना करें। जितना अनोइंग जिमी था ना नहीं उतनी नहीं अनोइंग है नहीं 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 मैं नहीं यार मैं नहीं देखना चाहती ऐसा किरदार जो वन साइडेड जो है ना ऑब्सेशन कर रहा है। बट मुझे क्लियरली लगा कि उसका ऑब्सेशन वो तख्त है। वो कहती भी है उसको मरियम को हाँ कि फिक्र ना करो मैं तुम्हें जाने दिया करूंगी अपनी मर्जी से जहां तुमने जाना वो भी है बट इट्स ऑल इन मुतसिम्स प्यार और इश्क मुझे लगता है। विल फाइंड आउट ओके अगर ऐसा हुआ फिर तो ठीक है क्योंकि मकसद तो है उसके मकसद obsession वो है का। उस वजह से वो मुर्तसिम को और सबसे बड़ी इंट्रीग वैल्यू ये कि वो है कौन कौन यू नो। हाँ कौन है वो तो वो वो है है ठीक है। फिर जी। हम इंट्रोड्यूस होते हैं दूसरे घराने से। जी फनान अली आगा बहुत लविंग केयरिंग बाप बिल्कुल डोटिंग फादर मिस्कीन मिस्कीन मर मिटने वाले। वो कहते हैं जी हाँ। बेटी तुमने लॉ करना है तो मैं तुम्हें वहां पे मुझे जो है अब वो अनोइंग लगी स्पेशली जब बाप कह रहे मैंने ये केस नहीं लेना। हाँ कह रहे मैंने नहीं लेना केस में हार जाऊंगा। नहीं नहीं हाँ। बाबा आप लें। हाँ वो थोड़ा प्रीची भी हुआ वो हाँ, सब कुछ चीजें हुआ, वहां पे हुई तो वो हुआ। मुझे थोड़ा सा पार्ट जो है Right. वो लगा। हाँ बट अदर देन दैट आई थिंक 2 enjoyable episodes very enjoyable एंड वो जो शुरू में हमें लगा कि यार इट probably won't be our cup of tea maybe it won't be our cup of tea 10 I think episodes it will be 6 and I'll episodes tell you why हम लोग हैं ऑनलाइन जनरेशन। हमारे अटेंशन स्पैन्स जो है ना हसन वो बहुत छोटे हैं। हम लोग ऐसा कोई ड्रामा जो कि स्लो पेस्ड हो या उस पे चल रहा हो धीमा धीमा वो हमसे हजम नहीं होता। वी वांट क्विक एक्शन वी वांट ऑप्टिक्स वी वांट द साउंड वी वांट यू नो द लॉट ऑफ you're engrossed something to be everywhere on steroids steroids ये वो है ये तो है वैसे इसमें कोई शक की बात नहीं। इसमें एक मोमेंट भी काम का नहीं था। नहीं काम एज CLM काम हाँ बिल्कुल KAAM वाला काम नहीं उर्दू वाला काम नहीं मैं काम लाइक यू नो it was like constant it was absolutely और 2 एपिसोड में इतना कुछ हुआ है कि बंदा कहता है कि ओह अच्छा डूज 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 डूज। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पिंक फ्रॉक के बारे में क्या कहेंगे? जी तो पिंक फ्रॉक जो है ना वो मैचिंग एक्चुअली पहले ही नहीं दूसरे इवेंट के साथ मैचिंग हुई हुई थी। कैसे? जो दूसरी थीम थी वो पिंक और व्हाइट थी ना।
हाँ बर्थडे की। वो जैसी भी थी, जिस जो भी थीम थी, हाँ। लो जी होती है मीरब की बर्थडे और डिसाइड करती हैं माँ बेगम कि बर्थडे जो है वो हैदराबाद में मनाई जाएगी और मीरब पहुंचे। उसको मुतसिम लेने पहुंचता है कराची। हाँ। घर वो जाता है तो वो कहती मीरब नहीं है, वो पीछे जाता है उसके जहाँ पे उसके जिम्मी ने हाँ। उसके लिए बर्थडे बर्थडे होस्ट की जिम्मी होती है। सही नाम, ये जिम्मी अब, ये ये तो जिम्मी ये है। भी है, ये भी है, ये हाँ जिम्मी है। ठीक है। जिम्मी ने जिम्मी बर्थडे फॉर दोज नॉट गेटिंग द रेफरेंस, फर्क में जो जमशेद हम उसकी बात करें। तो लड़के ने अगर पहनी जी टी शर्ट के ऊपर शर्ट जैकेट हाँ। तो आप समझ लें वो नाकाम आशिक है। ओ, आज मैंने आज ये leather पहनी, मैंने फिर सोचा ही है, मैं कहा यार ये हसन भी पहनते हैं लेकिन हसन को बस कर देनी चाहिए, अब ये लुक आप नहीं, क्यों? बस ये बड़ी टीनेजर लुक है, स्ट्राइविंग टू फाइंड लव बट नॉट फाइंडिंग इट, आई डोंट I'm नो। not striving for. Exactly, so I mean yeah, this is a better look for you. Okay. The teenage look has to drop. Anyway, जिम्मी ने पहनी होती है जी एक टी शर्ट और उसके ऊपर डेनिम की जैकेट और फिर मीरब आती हैं तैयार होके। By the way, शाहरुख खान भी ऐसे कपड़े पहनता है। Anyway, शाहरुख खान ने टी शर्ट और वो, मैं आपको अभी दिखा या देता शाहरुख खान को ना कंपेयर करें ना, हूँ। वो ये तो- क्या बात हुई है? नहीं, ये शाहरुख उस खान लेवल पे पहुंच के आप जो भी करेंगे ना वो मैं स्टाइल भी बन अपने जाएगा। दिमाग में पहुंच गया उस लेवल पे। ठीक मैं है, कुछ भी किए करूँ। जाए फिर। आप बुरे नहीं लगते वैसे टू बी फेयर, बट Okay. जिमी जो है ना उसको देख के ठीक। लगता है कि ये नाकाम किसी किसी आशिक की है। बिल्ड ऐसी होती है ना। हाँ, उसको देख के लगता है नाकाम आशिक। मैं नाकाम आशिक नहीं। नहीं इस पे एक एपिसोड होगा आही पे, हार्ट टू हार्ट। तो अपना फिर आती है जी मीरब तैयार होके अपनी बर्थडे पार्टी के लिए हाँ। और उसके दोस्तों ने उसको कहा हुआ है कि जो जिमी है वो तुमसे प्यार करता है और वो शायद प्रपोज भी कर। प्रपोज भी करें। आर यू किडिंग गाइस, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। तो मीरब ओब्लिवियस भी है इस चीज से। मीरब उसकी बहन है, माहिर की। माहिर की बहन है, उसको समझ नहीं आती, उसको नहीं समझ आती। तो मीरब आती है जी एक फ्रॉक पहन के। हाँ। अच्छा, वो फ्रॉक मेरी सेंसिबिलिटी को इतना जार किया उसमें। क्यों? क्यों आमना? बाकी तो आपने वार्डरोब की बड़ी तारीफ हाँ की। की, लेकिन वो फ्रॉक जो बाकी वार्डरोब जिसने बनाया ना, उसने ये फ्रॉक नहीं बनाया, वजह क्या हो या सकती शायद बनाया है उसी ने ये वार्डरोब, इसलिए कि बाकी वार्डरोब है बहुत ट्रेडिशनल। whoever's designing is okay with है? doing. Did you feel that? I Or did, were I those did, my I eyes? did. Oh, my eyes, no. Okay. Whoever's designing the wardrobe has a very desi aesthetic, I feel, and they're fine with the desi look. जहाँ आई ना वेस्टर्न, वहाँ होगी तबाही। लो जी, मीरब को आपने बना दिया मल्टी टियर्ड टैफ्टा का पिंक फ्रॉक, उसके ऊपर आपने पहना दिया पिंक रंग का ब्लेजर, और वो ब्लेजर भी शार्पली कट ब्लेजर नहीं है, उस ब्लेजर की स्कैलप्स हैं, स्कैलपिंग उसकी नीचे हुई हुई है, और वो स्कैलपिंग भी खत्म नहीं होती, उस स्कैलप पे भी आपने झालर लगा दी है। हाय हाय। एक होती है टैसल, आपने झालर लगाई है, वो भी सिल्वर रंग की। उस सिल्वर टैसल से मैचिंग आपने उसको पहना दिया सिल्वर ब्रोच। 2023 में सिल्वर ब्रोच कौन पहनता है भाई? ये ऐसे ही है कि वो जैसे ट्रक कार्ड, यू टेक इट टू फार। You take it. Oh, नहीं. Placard is cool on all levels. No. W11 नहीं, वो ट्रकों के ऊपर आप बहुत सारी चीजें लगा देते हैं लगा ना। दे, वो जबरदस्त लगती हैं। अच्छा। वो उनका नहीं। ट्रक इज ट्रक। ट्रक इज ट्रक, And your मीरब is पार्टी मीरब। फ्रॉक इज पार्टी फ्रॉक। फिर आपने उस सिल्वर मैचिंग के साथ मीरब को पहना दी सिल्वर रंग की सैंडल। Oh my God, it was such a bad look. मेरे लिए ठीक है, बट ऑल्सो देयर वाज स्किन शो, एंड आई वाज लाइक जिस खानदान वैल्यूज वो, और फिर वो जाती भी है। नहीं. अब आप you taking it too far. Skin show was fine. She's been raised urban. She's an urban girl. She's studying. She wants to be a lawyer. कहाँ स्किन शो थी यार? एंकल्स नजर आ रही थी। हाँ। इससे ज्यादा स्किन शो तो हमारी जो हाई पैंट्स होती हैं उनमें नजर आ जाती हैं। So that was okay. स्किन शो बिल्कुल नहीं थी, एंड उसको दिखाया भी यही है कि शी इज अ रियली मॉडर्न गर्ल। वो मॉडर्न लग नहीं रही थी, प्रॉब्लम ये है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बाकी का वार्डरोब किया और जिन्होंने ये वार्डरोब किया, एसेंशियल फर्क ये था कि उनका ईस्टर्न बहुत अच्छा है, सेंसिबिलिटी, वेस्टर्न नहीं। वेस्टर्न नहीं। Western is like Western made in Hyderabad. You know, it's like got a very very desi touch. Maybe to it. that was intentional then, क्योंकि वो हैदराबाद की I really don't think से, so. मतलब not to be नहीं। demeaning to people in Hyderabad. नहीं, बट एक होती है ना हर सिटी की एक सेंसिबिलिटी होती है। हाँ। You don't expect to find couture in Hyderabad, हाँ, right? हाँ। वही बात There's है। no Gucci store in Hyderabad or in Yeah, Karachi for that yeah, matter. Yeah, absolutely. हाँ, तो आप यहाँ पे तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे So ना। एक सेंसिबिलिटी होती है हर जगह की, तो सेंसिबिलिटी वो पिंक ड्रेस तो बिल्कुल it like got on my nerves completely. It was such a bad dress. अब जो फॉर एग्जांपल फर्क में आप जब देखते हैं उसको, आइजल को, आइजल shown to be a young English medium hip college going And she girl, dresses apart. and she dresses apart, she looks it. उसकी जितनी high waisted jeans हैं या उसकी shoes pants हर चीज is like on spot. This was not on spot. That was a really bad outfit. ठीक है। Yeah. दूसरी मैंने, I think I don't want to say this too soon, but I also feel that Yumna is a brilliant actor,
but she has a bit of a Vidya Balan syndrome. अब आप Which पूछें is विद्या बालन सिंड्रोम कौन which है? is विद्या बालन इज अ सुपर्ब एक्टर और हर कैरेक्टर उनको जब दिया जाता है उसको वो 100% निभाते हैं. But the few times that she's done urban cool, she's not been able to nail it. आपको याद है किस्मत कनेक्शन with Shahid Kapoor? It was a bad look for Vidya Balan in those dresses and those that she could not adapt to. बाकी आप उसको हर उसमें देख लें, Dirty Picture और जितनी उनकी फिल्में हैं, she's my God, she's such a brilliant actor in them. But the urban cool she never could do. The same is with Yumna. Yumna is a superb actor. आप दिल ना उम्मीद तो नहीं हो. My God, what a performance, you know. Brilliant. डर सी जाती है सिला, brilliant. Sinfe Ahan, brilliant. But urban cool, she's not managed to nail so far. And she's not played in urban but cool. this girl is supposed to be urban cool. I feel that she's supposed to be because opposite तो तभी बनेगा ना कि वो एक पूरा वहाँ का पला बड़ा एक और ये शहर की लड़की. और ये शहर की लड़की. तो कॉन्ट्रास्ट तो यही था कि ये बहुत अर्बन कूल होती. अच्छा, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंटेंशन ये है कि ये कॉन्ट्रास्ट ठीक है. मैंने Contrast- कहा कि it's too soon हाँ, to say. कॉन्ट्रास्ट ये है कि यार कि सेम खानदान का लड़का, सेम खानदान की लड़की, और जो आपने कहा कि जितना वही सर फिरा उतनी वही सर फिरी है. दैट्स द कॉन्ट्रास्ट कि इनको साथ में डाल दो. हाँ, ऑफ कोर्स वो एक गांव, बट आप देखें अगर मुर्तसिम को, तो वो अर्बन कूल है, वो ना है. होते हुए भी. हाँ हाँ. उसके आप कपड़े देखें, Exactly. एक्सेप्ट कि वो एक जगह वहाज ने जराबें पहनी हुई थी सूट पे, और फिर वो जराबें हट गई. जब वो घर पे था तो जराबें थी, और ब्राउन वाली ब्लू थी, ब्लू थी. ओके. ब्लू जराबें पहनी हाँ. हुई थी. तो मुझे समझ नहीं है कि वहां पे ब्लू जराबें क्यों, वहाज क्यों पहनी ब्लू जराबें, क्योंकि अगले शॉट में नहीं थी जब वो उसको लेने जाता है. हाँ. मीरत को. आज की जुराबों के साथ हमें हमेशा प्रॉब्लम होता है. अगर आपको फतूर में याद हो, हाँ. तब भी हमने कहा था कि इतना ये बाहर से आया है, इसने ब्राउन ढीली जुराबें पहनी हुई हैं. वहां की जुराबों के साथ हमें हमेशा प्रॉब्लम ठीक होता है. है. तो वहां पे उस दिन ठंड लग रही थी वहाज को, जी. घर पे जो मुर्तसिम को. को हाँ. वहाज को मैं कहूंगा ना, अच्छा, क्योंकि चलो. मुर्तसिम ने तो उतार दी जराबें. ठीक है. तो वो उधर पहनी हुई थी घर पे, और जब वो मीरब को लेने गए तो नहीं पहनी हुई थी. हाँ. बट दैट वाज अ मच बेटर लुक विदाउट द सॉक्स. Without the socks. But he's a cool character. I actually don't prefer men without socks in suits, especially when they're wearing jackets. Without socks नहीं होती ना, no show socks. हाँ, but होती I हैं. don't. I mean, with suits you ठीक should है, wear. socks. But उस सूट के साथ वो ब्लू थी तो नहीं, काली होती तो ठीक होती. Anyway, आप देख सकते हैं हमने कितने गौर से ये 2 एपिसोड्स देखे हैं. anyway, so Murtasim does come. Murtasim is not urban cool, but Murtasim is cool. No, but वो जो अंग्रेजी भी बोल रहा है, जो ऐसा नहीं है कि वो गाँव में पला बड़ा नहीं है. तो ठीक है ना, वो पढ़ा तो लिखा वो पढ़ा लड़का तो है. शहर हाँ, में पढ़ के आया हाँ, होगा. हाँ, exactly. पढ़ा लिखा लड़का है और पैसे वाला है, तो he does it fine. और वो भी तो हैदराबाद नहीं, कराची में कौन. अच्छा, ये कराची में रहती है मीरब, और वो हाँ, लोग हैदराबाद में हाँ, रहते हैं. तो हाँ. हैदराबाद शहर है, अर्बन एरिया. Absolutely, तो obviously. absolutely. तो urban नहीं है, लेकिन cool है Murtasim. मीरब cool नहीं है. मीरब cool है. मीरब की हरकतें भी cool नहीं है, और मीरब का लिबास भी cool नहीं है. एक चीज होती है अच्छा होना, और एक चीज होती है प्रीची होना. वो आमना आपको अब समझाएंगे नहीं, difference. मैं क्यों समझाऊंगी, आपने शुरली मारी है. अच्छा होना है कि यार नेचुरली यू नो यूर अ गुड पर्सन. Yeah. आप चाहते हैं कि इंसाफ हो लोगों के साथ, आप चाहते हैं कि उसका एक तरीका होता है काम करने का कि आप स्टेरॉइड्स पे गए बगैर अच्छाई करते हैं. हाँ. एक होता है कि अब आप जैसे बजिया है पिंजरा. पिंज Cool है ना, urban cool है ना. बजिया is a perfect example of urban cool. अच्छी है. हाँ. उसकी कितनी बेइज्जती भी करता है जावेद, सब कुछ है, वो अपनी दोस्त का साथ हाँ, दे रही हाँ. है, वो अच्छाई की तरफ जा रही है, यू नो. बट शी इज नॉट ऑन स्टेरॉइड्स. लेकिन इनको डालना है ना, इनको वो मैग्नेटिक उसका इफेक्ट भी तो देना है ना. हाँ नहीं, लेकिन ये अच्छी, अब ये अच्छी चीज है, इसमें कोई बुरी, वो अपनी मुलाजमा की जा रही है, मदद कर रही है, सब कुछ सही कर रही है. हाँ. बट जिस हिसाब से वो कर रही है वो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है कि यार इट्स टू और माफी भी मांगती है अनवर साहब से, तो बड़ी बदतमीजी से मांगती है. तो ठीक है. वो तो मुझे सही लगा, वो तो ठीक शी इज है. इन कैरेक्टर. हाँ. बट ये जो अच्छाई वाला मामला ना, प्रीची एक हो गई है कि अच्छा नहीं पापा, आप ही ने तो कहा था कि. बहरहाल ये चीजें बहुत छोटी हैं, और आगे जाके अल्लाह करे छोटी ही रहें या खत्म हो जाएं. और ये बात फॉर श्योर दैट तेरे बिन इज अ सुपर एंटरटेनिंग वॉच हाँ. so far. If nothing else, I think it will have great roastable qualities. I think it'll have both. I think we'll also be intrigued by the story, और roastable भी होगा. जैसे पिंक ड्रेस को रोस्ट करना बनता था, हाँ. बट बाकी जो सारी स्टोरी थी और उसकी इंट्रिग वैल्यू और ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको नजर आ रहे हैं कि होंगे आगे. हफ्ते में 2 एपिसोड वाले ड्रामे जनरली जो होते हैं वो. और मैं चाहती हूँ कि मैं देखूं मुर्तसिम और मीरब को इकट्ठे. हाँ. और
you know. और सिराजुल हक साहब ने वो भी डाला ना, बम्प वाला सीन। हाँ सिर्फ अच्छा उसमें कलियां नहीं थी उसमें नहीं, तो। शुक्र है आपने मुझे याद किया। उसमें बम्प में क्या हुआ, वहाज और यमुना, मैं एक्टर्स की बात, क्योंकि वहाज और यमुना की टक्कर हुई। अच्छा वहाज ने पहले इस हाथ से आगे किया, फिर इस हाथ से पकड़ के और यूं किया। मैंने कहा अच्छा खुद ही दूर करके मैंने खुद ही पकड़ लिया। हाँ। तो अच्छा था फिर वो। मुझे वो राज़ उल्फत का सीन याद आया, हाँ। कलियों वाला। हाँ वो जो ग्रेविटी के बगैर ग्रेविटी के कलियां थी, बगैर, एंटी वो ग्रेविटी। कहीं ऊपर घूम घाम के क्यूट। टारगेटेड कलियां। हाँ तो ये है यार, सिराज भाई को क्रेडिट जाता है भाई। यार, बहुत क्रेडिट जाता है बिकॉज सिराज उल हक जो पेस बनाते हैं ना ड्रामे की, और जिस तरीके से कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, या कोई सीन इज नॉट बैडली एडिटेड, इट्स नॉट बैडली कट, एंड द पिक्चराइजेशन, एंड अगेन ही हैज कैप्चर्ड द ग्रैंडियर। हाँ। ये जरूरी है। वो जो स्क्रीन है ना कि चेंज कर दी और आपको ले गए उस दुनिया में जहाँ पे that's his victory भाई, Absolutely. in true sense. So trending number 1 for very good reason, and I'm कुछ लोगों ने कहा यार कि वो है हमारी सेंस, वो ओटीटी और ये सब ठीक है, हर तरह के ड्रामे बनते हैं। सो फार हमारी सेंसिबिलिटी को उस तरह से नहीं हिट किया कि हम बोले कि वो इट्स टू मच फॉर अस। एंजॉयबल है। एक्टर से भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ एक्चुअली अगर वहाज और यमुना के अलावा कोई और होता तो शायद होता टू मच फॉर आवर सेंसिबिलिटीज, बट दीज एक्टर्स आर ब्रिंगिंग यू नो सम काइंड ऑफ semblance of less OTT-ness to it, although they're pretty OTT. और तो it's pretty OTT। मैं बता रही हूँ, Bloodshot steroids पे भाई दोनों on crack। एक तो blink ही नहीं किया भाई उसे 2 एपिसोड में, आप सोचें। हाँ Bloodshot eyes, but he's looking good। हाँ but he's looking good। something's working for तेरे बिन so far। no all of this is working for हाँ it। what's working is the girl is not a bichari, that's what's working। हाँ so that's which is what I mean। Absolutely। कि उसमें एक प्लॉट में एक ऐसी चीज है कि जो आपको वो नहीं क्रिंज नहीं कर रही नहीं कि यार ओ मैन नहीं, और उस घर की, उस टेस्टोस्टेरोन रिडन घर की है भी मेट्रियार्क है, हाँ who's in charge, so these things are great। पता नहीं अब कितना चले, हम पहले 2 किस्तों बाद फिर खुश हो जाते हैं। ठीक है ना, जब तक है उसको खुशी ना चलो मारे, जब तक है तब तक है। तो जो टाइटल पे लिखा हुआ है इज तेरे बिन वर्थ वाचिंग, डेफिनेटली फर्स्ट 2 एपिसोड आर वर्थ वाचिंग। जिन्होंने देखा आप अपना फीडबैक, वो लोग जिन्होंने देखा और जिनको नहीं पसंद आया वो कह रहे हैं यार हमें नहीं पसंद आया हमारे हिसाब, वो जरा डिटेल में थोड़ा कमेंट करके बताएं कि क्या चीजें आपको नहीं पसंद आई। और क्योंकि एज फार एज वो जो एलिमेंट होता है एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला, टॉक्सिक नहीं है अभी तक, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला उस तरह का अभी नहीं लगा, महसूस हुआ। अच्छा जो वकार साहब हैं, वकास वो थप्पड़ मारते हैं मेरे को कि नहीं मारते? नहीं, दिखाते नहीं है, बट वो अच्छा उन्होंने उसको रेज किया। गुड पॉइंट। वो कहते हैं आपने मुझे मारा। हाँ मारा तो नहीं, मतलब है कि तो कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो भी गलत था वैसे, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं मारता, लेकिन ये है कि वो मारते नहीं, बट मारा नहीं था, सिर्फ यूं किया था। बट ठीक है उन्होंने उसको एक बड़ी चीज बनाया, उसको वो नहीं किया, नॉर्मलाइज नहीं किया। ठीक, और कुछ आप ऐड करना नहीं, देखिए ना ऐसे ऐसे चीजें याद आ रही हैं, बट ये गुड था यार, आई वाज रियली एंजॉयड दिस। रिकॉर्डर रुक नहीं रहा मेरा और आमना का तेरे बिन के ऊपर, बट अच्छा था, मजे का था। देखते हैं आगे क्या होता है। अगले हफ्ते से कुछ अनकही शुरू हो रहा है, 7 जनवरी से कुछ अनकही शुरू हो रहा है। सो नेक्स्ट मंडे के रिव्यू में नेक्स्ट मंडे के रिव्यू में आएगा कुछ अनकही। अच्छी बात है, नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं। तेरे बिन 2023 का पहला ड्रामा जो हमने रिव्यू किया जी, है ना जी, तो इंटरेस्टिंग। लेट्स सी 2023 में और क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। मैं और आमना आपसे मिलेंगे वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज।